के गाइडेंस में और डॉक्टर रेहानुल हुदा और उनकी टीम के द्वारा इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि बार बार मेरे पास कॉल आ रही है, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके स्क्रीनशॉट वगैरह मंगाए हैं मैंने। तो ये क्लास डॉक्टर रेहान साहब, इसमें कुछ इस तरीके का आ रहा है। डॉक्टर रेहानुल हुदा पर्सनल मीटिंग कर वेटिंग रूम में कोई ले नहीं पा रहा है क्या? दानिश आ चुके क्या? MS बागवारे? हाँ जी सर, हम आ गया। आ गए थे, ठीक है। बस यही दिक्कत आ रही थी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस निगेटिव और पॉजिटिव के बारे में, जो कि हमारे भ्रांति बनी रहती है हमेशा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कैसे करें, क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, डोज कैसी रहनी है हमको। तो इसके उसमें डॉक्टर रेहानुल हुदा और टीम नेटजेस हर्बल परिवार और आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर इसका गहन अध्ययन किया और उसके ऊपर एक संक्षिप्त रूप से आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके का इसमें रहेगा, क्या रोग हैं, डिसीज क्या होती हैं, किसी भी ऑर्गन के हाइपो या हाइपर फंक्शन की वजह से होने वाले रोग क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे, किस चीज से उसको रिलेट करेंगे, तो ये इसमें समझाया जाएगा। डाइल्यूशन का चुनाव हमें कैसे करना है, मेडिसिन का चुनाव हमें कैसे करना है, तो इसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा इस क्लास में। तो मैं आप सभी का अभी तक जो है इसके अंदर हमारे लगभग 87 लोग आ चुके हैं, 2 और हैं, 89 लोग हो गए हैं। तो उन सभी का स्वागत करता हूं और डॉक्टर गिरधर गोपाल जी हमारे जो हैं उनको हैंड ओवर करता हूं। डॉक्टर गिरधर गोपाल जी। Thank you, Sanjit. Can I request Dr. Beena to take over and welcome all the non-Hindi personnel that we have on the group? Yeah, a very, very good morning to all of you. I heartily welcome all of you today, 19th of August, 2023, 8:22 a.m. in the morning for a very informative session on a very interesting topic, dose and dilution of electrohomeopathy. Those who have carefully experimented with electrohomeopathy remedies know that they are capable of exercising extraordinary therapeutic action in very many cases and conditions. The magical, marvelous, and natural remedies, its simplicity of administration brings the art of healing within reach of all who care to devote to it a moderate amount of thought, study, and observation. With these beautiful words said by none other than our beloved Count Cesar Matai, I now take the pleasure of inviting Dr. Rehanul Huda, a spagyrist, electrohomeopathy physician, managing director of Nadzia's Herbals, and a researcher and a senior consultant in Silvenza Hospital. Welcome, sir. We are all ears. Please take over the program. Yeah, before Dr. Huda comes in, I would like to bring in Dr. Aviral, who is a senior scientist from FCRI. And he is a person to reckon with when it comes to plants and phytochemistry. So, Dr. Aviral, can you please unmute yourself and give us a few words of wisdom?
Uh, Hello, good morning, everyone. This is Dr. Aviral from Jabalpur, and thank you inviting me for this very informative, I suppose, this session, and the first time I'm joining this. And so far as my introduction is concerned, let me correct myself. I am a scientist of fungi, basically, and Okay. anyway, but we are dealing with the plants and all plants. In fact, we are dealing with the diseases of plants, and plants cures us. That's the beauty of this seminar, we can say. And I'm very much impressed with. Actually, I'm very new. Let me introduce first that I'm very much new for this electrohomeopathy. And when I search as a scientific mind, I find only two persons. One is Rehanul Huda sir, and another is Dr. Anish Srivastav. They both speaks very scientifically, especially Huda sir. They have such a good team, and when I gone through their books, and I find that they are very intelligent peoples and doing a very good thing for electrohomeopathy, I suppose. And really, I wish very best for them for always, and bring homeopathy, electrohomeopathy in a scientific way. That's my request to Huda sir, since he is putting a very painful and very hard efforts, and we are ready here. I'm discussing with some of my fellow scientists who are with phytochemistry and working in chemistry division, so far as our electrohomeopathic plants are concerned, to chemoprofiling them and find out some more properties. Why in 200 or 1000 dilutions also they work, whereas when in a very common day-to-day life, if we will say, if you put a drop of a milk in a one spoon, and whereas in a bucket, it definitely it will vary. But anything anyway, I won't take much time of this gathering. I am feeling very proud and very thank you to Huda sir and everyone present here. Thank you, sir. Thank you, Dr. Aviral Saiya. And it's very interesting to see such excellent scientific people like you join us. It's a pleasure to keep you on board, and we would love to take your guidance time and again. Thank you, sir. Thank you. Always there. Thank you, sir. Okay. Can I request Dr. Rehanul Huda to come on stage immediately without losing any more time? We have almost 1 century of people, 96 people already here. Wonderful. Okay, Dr. Huda, the stage is all yours. Good morning. Priyatham, please control the meeting. Good morning, everybody. Priyatham, mute everybody. Today, we are here to discuss. Huda sir, just give me one minute. I am muting everyone. Dear participants, I am muting everyone. You cannot unmute yourself during the lecture of Dr. Huda is going on. So I'll unmute you at the end for any question and answers. At that time, you can ask the questions. Okay. In between, no question and answers, please. Please make a note of your questions and ask later. Yeah, in between, when Dr. Huda would like to close one topic and move to the other, he will ask any questions, please answer at that point of time. I'd like you to unmute all. Sure, sir. We'll do that. So until then, I'll keep everyone on mute mode. Okay. Right. 1 second, sir. Please give me 1 minute. I'm unmuting everyone. Yeah. Huda sir, you can unmute yourself and please go ahead, sir. Okay. So, good morning. लगभग 3 महीने के बाद मेरा आज पहला इस टाइप का ऑफिशियल क्लास हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट में से मैंने अपने सारे जितने भी क्लासेस थे वो बाइंड अप कर दिए थे। तो
वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 97% जो है वो हमारे इस क्लास के अंदर है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज वेरी इजी, क्योंकि जब हम लोग मेडिसिन की जब हम बात करते हैं, जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी मेडिसिन है, 38 मेडिसिन। 38 मेडिसिन है। जब 38 मेडिसिन का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये 38 मेडिसिन तो बहुत आसान है, क्योंकि 38 मेडिसिन याद करने में क्या जाता है, जल्दी हम 38 मेडिसिन याद कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम चीजों के अंदर जाते हैं और अपना प्रैक्टिकल करते हैं, वैसे वैसे हमें चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देने लगती है। हमें लगता है कि यार ये तो जो 38 मेडिसिन है, इसमें से 38 में से कौन सी मेडिसिन को सिलेक्ट करना है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। फिर चलिए मेडिसिन भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद में फिर जो है वो डाइल्यूशन की बारी आ जाती है। डाइल्यूशन को सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ये हमें दो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई देती है। और ये दोनों चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड सिलेक्शन ऑफ डाइल्यूशन दोनों बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन हम लोगों का क्या है कि हम एक सही ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं। चीजों को आसानी से जो समझने का जो तरीका है उस तरीके को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या सिलेक्शन करना है। जबकि मेडिसिन का सिलेक्शन और डाइल्यूशन का सिलेक्शन, दोनों सिलेक्शन बहुत ज्यादा आसान है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोज एंड डाइल्यूशन के सिलेक्शन के ऊपर ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डोज एंड डाइल्यूशन का जो कंफ्यूजन है वो आज के इस क्लास एंड तक सभी लोगों का जरूर दूर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि किसी भी बॉटल के अंदर कोई भी लिक्विड जब जा सकता है जब आप उसके ऊपर से उसको कैप को हटा देंगे। जब तक आपको अपना ओपन माइंडेड चीजों को नहीं समझेंगे, जब तक चीजें आपकी समझ में नहीं आएगी। 1 मिनट के लिए आप अपना जो भी आपका चीजें दिमाग के अंदर चल रही है, डाइल्यूशन को लेकर के जो भी चीजों को लेकर के चल रही है, जो भी आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जो भी आपके थॉट्स है, उसको 1 मिनट के लिए आप बैलेंस कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। और फिर जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको आप उस तरीके से सीखिए। हाँ, अगर फिर भी उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, यू कैन डिलीट माई डाटा। लेकिन अगर दोनों चीजों को एक साथ रख करके चलोगे आप, तो बहुत ज्यादा आपके अंदर खुद और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये मैं अपना एक मेरी स्क्रीन विजिबल है। Yes, sir, visible, sir. आज का हमारा टॉपिक है डोज एंड डाइल्यूशन इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को अपने एक इंट्रोडक्शन के साथ में। हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन इंडिया के अंडर में कर रहे हैं। और हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटरनेशनली वर्क कर रही है। और हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्चर्स हैं, टेक्सोनोमिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आयुर्वेदा के फिजिशियंस हैं, नेचुरोपैथ्स हैं, एक्यूपंक्चर्स हैं, एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट्स हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हों जो कि हिंदी समझने में अनकंफर्टेबल अगर हो रहा हो, तो वो मुझे प्लीज टेक्स्ट कर दें, तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में उनको इंग्लिश में भी उसको चीजों को ट्रांसलेट कर दूंगा। एंड हम लोग एक साइंटिस्ट की एंड रिसर्च की एक टीम है
जिसमें कि डॉक्टर वीके अग्निहोत्री जो कि CSIR IHBT पालमपुर के सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो हमारे साइंटिफिक हेड हैं। डॉक्टर अविनाश कुमार जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बायोटेक्नोलॉजी से। डॉक्टर अंजू त्यागी जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर राजेश चंद्रा जी जो कि केमिस्ट्री से हैं। डॉक्टर जूहा जाहिद जो कि एक मॉडर्न मेडिसिन की डॉक्टर है। एंड मुजीबुर रहमान एक फार्मासिस्ट है। इसके अलावा एक हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पूरे एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि पेन इंडिया के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों के एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर ही हम आगे जो भी मेडिसिन के अंदर चेंजिंग या जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसका डिसीजन लेते हैं। उसमें डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ हैं, डॉक्टर संजीत अहमद हैं, डॉक्टर संतोष जमदादे हैं, महाराष्ट्र से जियाउल हसन है, झारखंड से है मेहरा जी हैं, PS मेहरा यूपी से, डॉक्टर VK शुक्ला से यूपी से, डॉक्टर HK झा एस प्रेमी है, हरियाणा से, डॉक्टर प्रयाग शंकर यूपी से है, सत्यमूर्ति सर तमिलनाडु से हैं, डॉक्टर भरत सिंह यूपी से हैं, डॉक्टर जगजीत सिंह पंजाब से हैं, जगमोहन सांगा पंजाब से हैं, KP सिंह दिल्ली से हैं, डॉक्टर संजीव कुमार केरला से हैं, जसविंदर कौर यूपी से हैं, एंड परमानंद चंद्रवंशी झारखंड से हैं, जयंत चौधरी जी वेस्ट बंगाल से। तरीके से हमारी एक एक्सपर्ट की टीम है। नेक्स्ट हमारा जो है ये क्लिनिकल एक्सपर्ट्स की टीम है, इसमें डॉक्टर गिरिधर गोपाल जी है, डॉक्टर शम्स तबरेज है, डॉक्टर सरताज हुसैन है, डॉक्टर हेमलता जी हैं, एंड डॉक्टर बुशरा जबी हैं, डॉक्टर कदीरा हैं, डॉक्टर बीना है। जो भी हम लोग आपके साथ में डिस्कशन करते हैं, जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं या जो हमारा जितने भी हम लोग बुक्स लिख रहे हैं या जो भी हमारे रिसर्च मटेरियल है, वो सारा का सारा रिसर्च मटेरियल जो है वो हमारा मेडी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि हमारे जो अपने टीम के क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनके बिहाफ के ऊपर है। 20+ ईयर्स का हमारी जो टीम है उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। डेली हम लोगों की टीम की 200+ OPD है। एंड इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन को हम IPD OT ICU NICU में भी यूज करते हैं, तो वहाँ के भी हम लोगों के पास अपने एक्सपीरियंसेस हैं। सिल्वेंजा हॉस्पिटल करके ये एक हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 100 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पर भी हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन को यूज करते हैं। यहाँ से भी जो रिजल्ट्स इमरजेंसी में, ICU में, NICU में, OT में जो इस टाइप के रिजल्ट्स मिलते हैं वो हम लोग आपके साथ में शेयर करते हैं। तो हमारा एजेंडा जो है वो है टू एक्सक्रीट द इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिस। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस को बढ़ावा देना चाहते हैं किसी तरीके से, लोगों के पास तक, जन जन तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पहुंचे। और लोगों के पास तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पहुंचाने का एक ही मात्र रास्ता है, वो है कि हम आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को सिखाएं कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है और आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और वो प्रैक्टिस लोगों के पास तक पहुंचे। ठीक है? तो आवर प्राइमरी गोल्स इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। साथियों, आपको ये पिक्चर मैंने डाली हुई है स्क्रीन के ऊपर, एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी और इस पिक्चर को आप लोगों ने बचपन में बहुत देखा होगा। हम्म? ये पिक्चर है कि ये जो यहाँ पर ये एरो लग रहा है, यहाँ पर जो एक एरो लग रहा है, तो इसको स्टार्स तक कैसे पहुंचना है उसके लिए ये एक पिक्चर यहाँ पर जो है मैंने ये डाली हुई है। क्या एक पजल बना हुआ है ना। अब इसको आप कितने भी सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत बहुत टाइम लगेगा आपको यहाँ तक, इस स्टार तक पहुंचने के लिए। इस स्टार तक पहुंचने के लिए आपको क्या होगा, बहुत टाइम तक लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रिक के साथ में इस स्टार को जो है वो क्लिक करेंगे तो वो आप बहुत ही इजीली चीजों को समझ लेंगे और बहुत ही इजीली आप बाहर निकल सकते हैं इससे। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको बजाय इधर से पजल स्टार्ट करने के, पजल को आपको इस साइड से स्टार्ट करना होगा। जैसे आप इस पजल को इस साइड से स्टार्ट करेंगे तुरंत ही आपको जो है ये बाहर निकलने का रास्ता यहाँ से ये मिल रहा है। यहाँ से आप जहाँ पकड़ेंगे इसको तो यहाँ से निकल के आकर के सीधा ये आते हैं और ये हमको ये सीधा
बाहर निकलने का ये रास्ता यहाँ पर इसको पजल से मिलता है। तो सिर्फ क्या करना है, इस पजल को हमें समझना है। इसी तरीके का एक पजल आपने जो है वो डाइल्यूशन एंड डोजेस को बना करके रखा है। आज के इस क्लास के अंदर मैं आपसे इस पजल के ऊपर ही डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस डाइल्यूशन एंड डोज के फंडे को इजीली और इजीली समझे। सबसे पहले हम लोग हेल्थ की बात करते हैं। देखिएगा, जितने भी सिस्टम है उन सब सिस्टम्स के अपने अपने सिद्धांत हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, कुछ भी हो, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। इसमें पहला सिद्धांत आता है कि भाई आपके अकॉर्डिंगली हेल्थ क्या है, आप क्या समझते हो कि हेल्थ क्या है। दूसरा आता है कि डिजीज क्या है, डिजीज किसको मानते हो आप। इसी तरीके से सभी सिस्टम्स के अपने अपने सिद्धांत हैं। हमारा जो सिस्टम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो डॉक्टर काउंट सीजर मेट्टी ने जो दी है उसके अकॉर्डिंगली, एज पर द काउंट सीजर मेट्टी philosophy, steady state of blood and lymph is health. Steady state of blood and lymph is health, defined as a complete absence of chemical imbalances of blood and lymph. रक्त और रस का पूरी तरह से बैलेंस रहना ही हेल्थ है। Health results from or is a resultant of equilibrium, balance established among all the vital forces. Health is seated in the happy medium homeostasis. ब्लड एंड लिम्फ का ब्लड एंड लिम्फ का इक्विलिब्रियम स्टेज में रहना ही हेल्थ है। अभी यहाँ पर दो एक कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर्स के माइंड में रहता है, और बहुत बार लोग मेरे से वो क्वेश्चन कर देते हैं कि ब्लड और लिम्फ का बैलेंस होना जो है वो हेल्थ है। ब्लड और लिम्फ का आपस में बैलेंस होना हेल्थ नहीं है कि भाई 2 लीटर ब्लड है तो 2 लीटर जो है वो लिम्फ है, तो आपका जो है दोनों चीजें बराबर है, आप हेल्थी हो गए, नहीं। ब्लड का बैलेंस होना, ब्लड का बैलेंस होना मतलब कि ब्लड के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, पूरी पैथोलॉजी आपकी इसके अंदर छुपी हुई है, इस एक वर्ड के अंदर, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में जितनी मात्रा होनी चाहिए, जितना उसके अंदर जो है जो भी केमिकल्स होने चाहिए वो केमिकल्स हैं, तब आप एक हेल्दी पर्सन हो। इस तरीके से लिम्फ के अंदर अगर वो एक बैलेंस है, लिम्फ अपने आप में उसके अंदर जो केमिकल्स होने चाहिए वो उतने केमिकल्स हैं, देन आप एक हेल्दी पर्सन हो। ब्लड और लिम्फ का बैलेंस कुछ नहीं है कि साहब ब्लड, बहुत से लोग कहते हैं ब्लड और लिम्फ जो है वो हमारा बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जितना ब्लड है उतना ब्लड होना चाहिए बॉडी में, और जितना लिम्फ है उतना लिम्फ होना चाहिए। नो, ब्लड और लिम्फ का स्टेडी स्टेट में होना, यानी कि ब्लड का अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उतने वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होने, जितने लिम्फ के अंदर चाहिए वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिम्फ के अंदर होने, तब हम जो है वो क्या है, हेल्दी पर्सन है। इस तरीके से डिजीज क्या है, विशेषण ऑफ ब्लड एंड लिम्फ cause hyperfunction and hypofunction of the organ and lead to disease. विशेषण of the blood and lymph, रक्त का विशिएटेड हो जाना, रक्त का विशिएटेड हो जाना, यानी कि उसके अंदर जो केमिकल थे उसका इम्बैलेंस हो जाना, या लिम्फ का इम्बैलेंस हो जाना, डिजीज है। अब ब्लड के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं, कैसे जो है वो विशिएटेड हो जाते हैं।
ब्लड के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सारे के सारे कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं? वो सारे के सारे हमारे ऑर्गन से कंट्रोल हो रहे हैं। हमारे जो ऑर्गन है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट केमिकल बनाने के ऊपर लगे हुए हैं। वो सारे केमिकल्स बना करके कहाँ डाल रहे हैं? अल्टीमेटली ब्लड के अंदर डाल रहे हैं। अब अगर हमारे सारे ऑर्गन ठीक है तो ब्लड जो होगा वो क्या होगा? बैलेंस होगा। और हमारे अगर ऑर्गन कोई सा भी ऑर्गन डिस्टर्ब है हमारा, तो हमारा जो ब्लड है वो विशिएटेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए अगर लीवर आपका कम काम कर रहा है, लीवर के एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में ज्यादा होंगे, ब्लड विशिएटेड है आपका। आपका किडनी ज्यादा काम कर रहा है, डिस्टर्ब काम कर रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ गया, सोडियम पोटेशियम बढ़ गया, तो आपका ब्लड विशिएटेड हो गया। आपका लंग्स अगर कम काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम जा रही है, तो जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन हो गए, तो आपका ब्लड जो है विशिएटेड हो गया। तो यस प्रभात रंजन, यू कैन मैसेज में। तो जो विशेषण है ब्लड एंड लिम्फ के अंदर, ये विशेषण हमारा कहाँ से हो रहा है? हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं इनके हाइपर फंक्शन से या हाइपो फंक्शन से। ठीक है, हाइपर फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स क्या है? अगर कोई भी ऑर्गन जितना उसका काम करने की क्षमता है, जितना वो काम करता है उससे वो ज्यादा काम करता है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फंक्शन और हाइपर फंक्शन। अगर आपका कोई भी ऑर्गन नॉर्मल से ज्यादा काम कर रहा है तो क्या हो गया? वो हाइपर फंक्शन हो गया। इसी का उल्टा, अगर कोई भी ऑर्गन आपका कम काम कर रहा है, नॉर्मल से कम काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया? आपका हाइपो फंक्शन हो गया, या फिर निगेटिव फंक्शन ऑफ द ऑर्गन हो गया। ठीक है, ऑर्गन अगर नॉर्मल से ज्यादा काम कर रहा है तो वो हाइपर फंक्शन हो गया, ऑर्गन अगर नॉर्मल से कम काम कर रहा है तो वो हाइपर फंक्शन हो गया। इसी तरीके से डिजीजेस, जो डिजीज है वो अगर कोई भी डिजीज या कोई भी सिम्टम्स ऑर्गन के हाइपर फंक्शन से डेवलप होता है, यानी कि ऑर्गन के ज्यादा काम करने से कोई भी डिजीज अगर बनती है या कोई भी सिम्टम्स डेवलप होता है, उस सिम्टम्स को या उस डिजीज को हम पॉजिटिव डिजीज कहते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द हाइपर फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। अगर ऑर्गन के ज्यादा काम करने से कोई भी डिजीज डेवलप होती है या कोई भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिजीज कहते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी ऑर्गन के कम काम करने से कोई भी डिजीज डेवलप होती है या कोई भी सिम्टम्स डेवलप होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको निगेटिव डिजीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक का सारे लोगों का जो भी मैंने बताया आपको वो सब क्लियर है, या यहाँ अभी इस टॉपिक तक किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो लोग, आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरे से। प्रीतम, अनम्यूट टू ऑल। Yes, अभी sir. तक They can unmute themselves and ask the question. I have not unmuted all, but they can unmute themselves and ask the ओके, questions. किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। जहाँ तक अभी टॉपिक पूरा हुआ है यहाँ तक, इसके आगे चलेंगे वो आएगा टॉपिक है। Yeah. Mr. Prabhat Ranjan, you can go ahead and ask your question, please. Mr. Prabhat, I have सर unmuted आज you. Please go ahead. Okay. Anybody else? I think no questions, sir. You can please किसी proceed. का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मुझे जानना है कि अगर
ऑर्गन में फंक्शन हाइपो होता है हम्म, तो यहाँ बीमारी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये अगर ऑर्गन का फंक्शन हाइपो हो गया है, फंक्शन कम कर रहा है, तो क्या होगा पेशेंट को फिर? अगर ऑर्गन आपका कम काम करता है तब भी आपको कोई डिजीज हो सकती है। ऑर्गन कुछ ज्यादा काम करता है तब भी आपको उसको जो है वो डिजीज हो सकती है पेशेंट को। क्योंकि ऑर्गन का काम क्या है? ऑर्गन का काम है किसी भी केमिकल को प्रोड्यूस करना या उस केमिकल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करना। जैसे अगर आप वो कहे कि किडनी का फंक्शन कम गया है तो किडनाइन लेवल बढ़ सकता है, ये सब बढ़ सकता है कि? बिल्कुल जी, किडनी का कम फंक्शन करेगा तो आपका जो है वो पेशेंट का क्रिएट बढ़ जाएगा। जी किडनी फंक्शन ज्यादा करेगा तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। जी इसी तरीके से कोई भी ऑर्गन आपका, ऑर्गन क्या कर रहे हैं? ऑर्गन सारे के सारे ऑर्गन आपके केमिकल को, या तो केमिकल को प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के लिए, या फिर उसको हम्म केमिकल के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। हम्म ओके। Hello, sir. Good day, sir. यस सुजाता। If you give one or two examples, I think we can understand better. For example, acidity is a hypo or hyper function of the liver, हाँ, sir. ये सारे जो है वो एग्जाम्पल्स मैंने लास्ट में रखे हुए हैं। सुजाता, पीपीटी के एंड में जो है वो एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं मैंने। एनी अदर क्वेश्चन? अब आगे चलते हैं। It is very important to know what is actually happens inside the body and which organs are affecting our blood और लिव। किसी भी बीमारी के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। कौन सा ऑर्गन आपके ब्लड को इफेक्ट कर रहा है या कौन सा ऑर्गन आपके लिम्फ को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। पेशेंट जो हमारे पास आता है, पेशेंट जो हमारे पास आने के बाद जो भी पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स होती है वो क्या है? पेशेंट हमारे से हमेशा जो बताता है वो बताता है अपने सिम्टम्स। क्या बताता है? सिम्टम, जो कि पेशेंट के द्वारा महसूस किए जाते हैं। क्लिनिकल सिम्टम इज डिफाइंड एज एनी चेंज इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड which is felt by the patient, remarked by those around him। पेशेंट को जो भी परेशानी महसूस हो रही होती है वो आकर के आपको बताता है, दैट इज ओनली सिम्टम्स। सर मेरे जो है पेट में दर्द हो रहा है, ये पेशेंट ने आपको बताया। मुझे खांसी हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है, जी मचला रहा है, घबरा रहा है, जी मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरी सांस फूल रही है। ये सारे क्या बता रहा है पेशेंट? सिम्टम्स। इट इज नॉट डिजीज। डिजीज में जाने का काम किसका है? फिर आगे डॉक्टर के जाने का काम है कि वो सिम्टम्स के साथ में चीजों को जोड़े और ये देखे कि इसको बीमारी क्या हो सकती है, फिर वो उसकी उस डिजीज में जाएगा। एग्जाम्पल पेन, फीवर, चिल्स, स्वेट, फ्लैटुलेंस, कंजेशंस एंड स्वेलिंग्स, ये क्या है? सारे के सारे सिम्टम्स है। तो आपको पेशेंट ने बताया वो क्या था? सिम्टम्स था। इसकी आपके पास कोई दवाई नहीं। सिम्टम्स के ऊपर काम हमें नहीं करना। ठीक है, जैसे फीवर आ रहा है, सिम्टम्स है। कोल्ड हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, कंजेक्टिवाइटिस हो रही है, लेग्स के ऊपर ये स्पॉट हो रहा है, यूटीआई हो रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है इस पेशेंट्स को। ठीक है, या फिर उसको जो है वो एसिडिटी हो रही है। तो ये सब क्या है?
ये सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट्स ने आपको बताए हैं। इसके आधार पर अभी आप मेडिसिन यहीं से कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। देन साइन ऑफ द डिजीज, मोस्टली सुना होगा ना, साइन एंड सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या होते हैं जो कि मरीज हमें बताता है। फिर साइन क्या होते हैं? साइन वो होते हैं कि जो कि डॉक्टर ऑब्जर्व करता है पेशेंट्स के अंदर। इट इज एविडेंस ऑफ डिजीज, दैट मीन्स इट इज ऑब्जर्व्ड बाय अदर्स, visible and observable by healthcare professionals, can measure by checking temperature, x-rays, monitoring pulse rate, blood test and more. Okay, तो आप उसको पल्स देखते हो, या कहीं दर्द बता रहा है तो उसको दबा के देखते हो, खांसी बता रहा है तो इस टेस्ट से आप उसको चेक करते हो, लंग्स उसके। तो ये सब क्या है? ये साइन देख रहे हैं हम लोग। साइन कौन देखता है? साइन दूसरा बंदा देखता है, या कि डॉक्टर देखता है। पेशेंट को क्या पता होता है? पेशेंट को सिर्फ सिम्टम्स पता होते हैं। साइन कौन देखता है? साइन डॉक्टर देखता है। और ये जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये किस कारण आ रहे होते हैं? ये आ रहे होते हैं हमारे ऑर्गन्स के हाइपर फंक्शन की वजह से, या कि हमारे ऑर्गन की हाइपो फंक्शन की वजह से। हमारी बॉडी के अंदर 5 ऑर्गन्स के पेयर हैं जो मोस्टली सारी जो डिजीजेस हैं उसको कवर करते हैं, या उस सब के कारण होते हैं, या जो आपका ब्लड एंड लिम्फ है उसको स्टडी स्टेट में रखने में मदद करते हैं। जैसे कि लीवर एंड गॉल ब्लैडर, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड स्टमक, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स आपके ब्लड के अंदर स्टडी स्टेट मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। या यूं कहिए कि ब्लड के अगर कोई भी केमिकल चेंजेस आते हैं, ब्लड के अंदर किसी भी तरह का कोई विशेषण होता है, तो वो इन ऑर्गन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। फिर अब हम रेमेडी का सिलेक्शन कैसे करें? इन इलेक्ट्रोएम्पैथिक सिस्टम वी डायग्नोज द डिजीज बाय स्थेनिक और एस्थेनिक टाइप। लाइन पूरा मैंने एज इट इज कोट किया है मैटी की बुक से, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो बीमारी को डायग्नोज करते हैं हम, वो स्थेनिक और एस्थेनिक टाइप कंडीशन ऑफ पल्स प्लस और माइनस स्ट्रेंथ। हम जो है क्या देखते हैं? प्लस और माइनस स्ट्रेंथ, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात भी करते हैं। we become ill by either excess or deficit of force। जब हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी है वो कम हो जाता है ऑर्गन के अंदर, या ज्यादा हो जाता है, which caused by vitiation of the blood and lymph। So in a sick person there are two conditions of organ, either hypofunction और hyperfunction। दो कंडीशन हो सकती है किसी भी और बीमार के अंदर, या तो उसका ऑर्गन कम काम कर रहा है या ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है। फॉर दिस वी टेक प्रॉपर मेडिसिनल हिस्ट्री, symptoms and sign of the patient. As per the 5 element concept, we diagnose which organ is disease and its vitiation of blood and lymph, and select the organ's medicine। जो भी आपको कोई सिम्टम्स मिल रहा है, जो पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है, उससे आपको कहाँ पहुंचना है? उस सिम्टम से आपको रास्ता निकालना है उस ऑर्गन तक का, कि ये जो इसको सिम्टम्स पेशेंट को आ रहा है, इस सिम्टम्स के आने का वजह कौन सा ऑर्गन है, इसको किस ऑर्गन की वजह से ये परेशानी हो रही है। हम उस ऑर्गन तक पहुंचेंगे, जब जाकर के हम क्या करेंगे? उस ऑर्गन की मेडिसिन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑर्गेनिक हमारे पास जो मेडिसिन है वो किस चीज की मेडिसिन है? हमारे पास सिम्टम्स की कोई मेडिसिन ही नहीं है, हमारे पास तो मेडिसिन ही ऑर्गन की है। जब मेरे पास मेडिसिन ऑर्गन की है तो सबसे पहले मुझे हर बीमारी को जोड़ना पड़ेगा ऑर्गन के साथ। फॉर एग्जाम्पल किसी के बाल झड़ रहा है,
मुझको समझ नहीं आता भाई, बाल झड़ रहा है तो 38 मेडिसिन में से हम कौन सी मेडिसिन उसको देंगे? तो हम क्या करेंगे, बाल के झड़ने को जोड़ेंगे ऑर्गन से, कि इसके बाल झड़ रहे हैं तो कौन से ऑर्गन के अंदर डिस्टरबेंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या है कि किडनी का फंक्शन लो हो जाता है तो बंदे के जो है वो पेशेंट के बाल झड़ सकते हैं। तो अगर किडनी फंक्शन डाउन हो रहा है उसकी वजह से उसके बाल झड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी किडनी को ठीक करेंगे। कई बार लंग्स की वजह से बाल झड़ते हैं, हम चेक करेंगे इस पेशेंट के लंग्स में तो कोई इशू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लंग्स को ट्रीट करेंगे तो उसके बाल झड़ना रुकेंगे। बाल झड़ने का कोई वैसा तो प्रोटोकॉल नहीं है, कोई बाल झड़ने की कोई ऐसी पार्टिकुलर मेडिसिन तो नहीं है कि हम ये मेडिसिन देंगे तो बाल झड़ना रुकेगा। हमारे पास जो 38 मेडिसिन है काहे की है, ऑर्गन की मेडिसिन है। तो जितनी भी अनलिमिटेड डिजीजेज है, उन डिजीजेस को हमको जोड़ना किस चीज से पड़ेगा, पहले ऑर्गन से। क्योंकि कोई भी बीमारी तभी तो बनी जब हमारे ऑर्गन ने कम या ज्यादा काम करा। बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस बीमारी के अंदर मेरे कौन से ऑर्गन ने ज्यादा काम किया है या कौन से ऑर्गन ने कम काम किया है। उस ऑर्गन के पास तक मैं पहुंचूंगा और फिर मैं उस ऑर्गन की मेडिसिन अपनी 38 मेडिसिन में से निकाल लूंगा। देन जब मैंने ये मेडिसिन निकाल लिया, तब फिर मैं जो डोज का सिलेक्शन करूंगा। डोज का सिलेक्शन कैसे करना है, ये डाइल्यूशन का सिलेक्शन कैसे, डाइल्यूशन के सिलेक्शन में और बहुत ज्यादा एक उलझाव आपके दिमाग के अंदर ये चलती रहती है, इस बीमारी में हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। आप सब लोग मोस्ट ऑफ, मतलब मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे बाइक चलाने नहीं आती। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आपने बाइक चलाना सीखा होगा, जिसने भी आपको बाइक चलाने सिखाया होगा उसने आपको बताया होगा बाइक को कैसे जो है वो पिकअप लेते हैं। एक हाथ से जो है वो एक्सीलेटर देते हैं और फिर हम धीरे धीरे करके क्लच छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों चीजों को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, फिर जब आपने स्टार्टिंग में 1 2 4 10 20 बार बाइक चलाई होगी, आप बहुत देखते होगे कभी एक्सीलेटर ज्यादा हो जाता था, कभी क्लच आपसे छूटा एकदम से, कभी जो है वो एक्सीलेटर ज्यादा हो गया, स्पीड ज्यादा हो गई, बाइक बंद हो गई। लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, आज आप ना तो क्लच की तरफ को देखते हो ना ही एक्सीलेटर की तरफ को देखते हो, और आप बहुत अच्छी तरीके से परफेक्टली बाइक रन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस में आ गया। सेम जो है वो डाइल्यूशन का फंडा है। डाइल्यूशन को बिल्कुल भी आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि मुझको इस डिजीज के अंदर इस कंडीशन में ये वाला डाइल्यूशन देना है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि आपके सामने जो पेशेंट है उसकी क्या कंडीशन है, उसको कितना डाइल्यूशन चाहिए, लाइटर में डाइल्यूशन चाहिए या उसको स्ट्रॉन्ग में डाइल्यूशन चाहिए। हाँ, ये हम यहाँ डिसाइड कर देते हैं कि जितने भी ऑर्गन ऐसे हैं कि जो ऑर्गन कम काम कर रहा है किसी भी डिजीज के अंदर, या वो डिजीज या वो सिम्टम्स अगर इस वजह से आया है कि ऑर्गन कम काम कर रहा है, तो वहां पर आप क्या देंगे, वहां पर आप स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन देंगे। क्या देंगे वहां पर आप? स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन देंगे। कितना स्ट्रॉन्ग देंगे ये आपके पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरीके से कोई ऐसे डिजीज या कोई ऐसे सिम्टम्स जिसके अंदर आपके ऑर्गन कम काम कर रहे हैं, उसकी वजह से वो डिजीज हुई है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन देंगे। और कोई अगर ऐसी डिजीज है जिसमें के ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा था, हाइपर फंक्शन था, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम उसको लाइटर डाइल्यूशन देंगे। कितना लाइटर देंगे ये सिर्फ हम लोग एक आपको फार्मूले बता सकते हैं इस बात का कि डाइल्यूशन को हम कितना लाइटर देंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली कितना लाइटर देना है ये बात आपको पेशेंट की सीवियरिटी देखने के बाद में डिजीज की आपको सेट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप इसको सेट करते चले जाओगे, धीरे धीरे करके ये आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि इसके बारे में बहुत कुछ सोचने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो डोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज ऑर्गन, acute, subacute, chronic or degenerative stage of the organ. If the organ is hyper, dilution must be lighter. अगर ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है, सिम्टम्स पे नहीं जाना है, ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है, तो वहां पर हमें क्या करना है, लाइटर डाइल्यूशन देना है। ऑर्गन, इफ ऑर्गन इज हाइपो, डाइल्यूशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। ऑर्गन अगर कम काम कर रहा है तो हमें क्या करना है, डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग देना है।
सिम्टम पे नहीं जाना है, सिम्टम्स को रिलेट करना है कहाँ से, ऑर्गन के साथ। जैसे कि मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए पेशेंट को खांसी हो गई, एक्यूट कफ है, उसको खांसी हो गया, नॉर्मली ऐसे कुछ वायरल सा हो गया, खांसी हो रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि उसके जो लंग्स हैं वो हाइपर हो रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं नॉर्मल से। लेकिन अब अगर एक पेशेंट है, उसको दूसरा पेशेंट है, उसको भी खांसी हो रही है, लेकिन उसको खांसी इसलिए हो रही है क्योंकि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, पेशेंट को टीबी हो गया। अब जब पेशेंट को अगर टीबी हो गया, इसका मतलब है कि जो लंग्स है उसके, वो डेथ एंड डीके में चल रहा है, यानी कि हाइपो फंक्शन में जा रहा है। सिम्टम्स दोनों एक ही हैं, दोनों मरीजों को खांसी हो रही है, तो क्या आप दोनों को एक डाइल्यूशन दोगे? नहीं। जिसको नॉर्मल खांसी हो रही है वहां पर आप लाइटर डाइल्यूशन देंगे, जिसको ट्यूबरक्लोसिस की वजह से खांसी हो रही है वहां पर आप उसको स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन देंगे। तो सिम्टम के आधार पर हम कभी भी कोई डाइल्यूशन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर हम कंट्रोल करो, सिम्टम्स के आधार पर हम कभी भी किसी डाइल्यूशन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। डाइल्यूशन को जो हम सिलेक्ट करेंगे वो हम अपने ऑर्गन के आधार पर करेंगे कि हमारा ऑर्गन जो है वो हाइपर जा रहा है या हमारा ऑर्गन हाइपो जा रहा है। तो अगर ऑर्गन हमारा हाइपर जा रहा है तो लाइटर डाइल्यूशन। लाइटर डाइल्यूशन में आप कौन से डाइल्यूशन को लाइटर मानते हो? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके लाइटर डाइल्यूशन है। आप इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी आपको लगता है इनमें से कोई सा भी डाइल्यूशन आप यूज कर सकते हैं ऑर्गन के ऊपर। अगर आपको लगता है ऑर्गन आपका हाइपो कंडीशन में है, कम काम कर रहा है, तो वहां पर आप स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन दे सकते हो, फर्स्ट और सेकंड डाइल्यूशन। सेकंड डाइल्यूशन जो है वो आपका एक माइल्ड डाइल्यूशन, फर्स्ट डाइल्यूशन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन। और द डोज मस्ट बी diminished according to the gravity or violence of the illness, and smaller the dose, the closer must be intervals between them। और जब भी आप लाइटर डाइल्यूशन देते हैं, जब भी आप लाइटर डाइल्यूशन देते हैं, तब हम क्या करते हैं, डोज का जो इंटरवल है, डोज का जो बीच का गैप है, उस गैप को कम कर देते हैं। यानी कि आप किसी को अगर थर्ड डाइल्यूशन दे रहे हैं या फिफ्थ डाइल्यूशन दे रहे हैं तो आप दिन में 6-7 बार दे सकते हैं। किसी को आप फर्स्ट डाइल्यूशन दे रहे हैं तो आप उसको दिन में 2 बार देते हैं। तो डाइल्यूशन का जो सिलेक्शन है, वो डाइल्यूशन का सिलेक्शन हमारा सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन के साथ में है, क्योंकि हमारी मेडिसिन जब अंदर जाएगी तो वो ऑर्गन के ऊपर काम करेगी, ना कि उस सिम्टम्स के ऊपर। ऑर्गन अगर हाइपर हो रहा है, ऑर्गन पकड़ो, ऑर्गन हाइपर हो रहा है तो लाइटर डाइल्यूशन दे दो, ऑर्गन हाइपो हो रहा है तो स्ट्रॉन्गर डाइल्यूशन दे दो। ठीक है। और मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जो इस डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन के अंदर सीधा सीधा सा आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अपना आप ही प्रैक्टिस करनी है, अपने आप ही चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। बहुत से लोग बोलते हैं 1:9 के रेशो से डाइल्यूशन बनाए, 147 से बनाए, 199 से बनाए। ठीक है। वो सिर्फ आप किस कंपनी की मेडिसिन यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज की कॉस्ट 10 रुपए है, कोई चीज की कॉस्ट 10 रुपए है और मैंने आपको 100 रुपए दिए, तो उसके अंदर कितने आएंगे? वो 10 आ जाएंगे। और मैंने अगर आपको 1,000 दिए तो 100 आएंगे, 2,000 दिए तो आपके 200 आएंगे। तो सबसे पहले हमें जब यही नहीं पता है कि हमारे पास जो मेडिसिन है वो मेडिसिन का वैल्यू कितना है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो उसका कोई भी बाहर से व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसका डाइल्यूशन नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप हमसे ये कहो कि सर मेरे पास एक नोट है और मान लो एक बनाना, 10 रुपए का बनाना, एक बनाना है, आप मुझसे पूछो कि सर ये मेरे पास एक नोट है और मेरे को कितने बनाना मिल सकते हैं, मेरे पास एक नोट है और मुझे कितने बनाना मिल सकते हैं, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि भाई आपके पास नोट है तो आपको कितने बनाना मिल सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपके पास कितने का नोट है। 100 रुपए का नोट है तो आपको 10 मिल सकते हैं, 1,000 का नोट है तो
आपको 100 मिल सकते हैं। तो जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन आप जिस भी कंपनी की मेडिसिन ले रहे हो, उस कंपनी की मेडिसिन को अपने अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल करके ही सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं, सारी कंपनीज की जो मेडिसिन का जो ड्रग स्ट्रेंथ है वो सबकी डिफरेंट है। इसलिए कोई किसी के भी अकॉर्डिंगली हम सारी मेडिसिन को, जितनी मेडिसिन हमारे पास मार्केट में है, सबको एक ही रेशो के अकॉर्डिंगली उसके डाइल्यूशन बना करके अगर हम देते हैं तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो आप जिस भी कंपनी की मेडिसिन चला रहे हो, उस कंपनी की मेडिसिन के अकॉर्डिंगली ही आपको डाइल्यूशन को सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमसे D3 लेती हैं और आगे वो फिर उसको D4 बना करके और D3 के पैकिंग से मान लीजिएगा बेच देती है। अब उन्होंने आपको दे दिया, आपने उनके पास फोन किया, सर मेरे को ये परेशानी हो गई, मैं क्या दूं? उसको कहीं पर सेकंड डाइल्यूशन की जरूरत है, वो क्या बताएंगे वहां पर, बोलेंगे ठीक है इसका फर्स्ट डाइल्यूशन दे दो, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी फर्स्ट डाइल्यूशन ही सेकंड बना हुआ है। मेरे से कोई पूछेगा मेरी कंपनी का मेडिसिन के अकॉर्डिंग, मैं बोलूंगा सेकंड डाइल्यूशन दे दो। दोनों में कंट्रोवर्सी आ गई, सर वो तो फर्स्ट, आप वो फर्स्ट बोल रहे हैं, आप सेकंड बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ अपनी ड्रग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, वो बोल रहे हैं अपने ड्रग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। तो डाइल्यूशन के लिए जिस भी कंपनी के आप मेडिसिन चलाते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है कुछ टाइम तक उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो उसके डाइल्यूशन फिर आप इजीली समझ जाएंगे। मेन फंडा आपको यही रखना है कि आपको पहले ऑर्गन तक पहुंचना है। ऑर्गन तक पहुंचने के बाद में फिर आपको जो है वो ये देखना है कि ऑर्गन हाइपर में वर्क कर रहा है या हाइपो में वर्क कर रहा है। जैसे मान लीजिएगा हमारा सिस्टम है, हम लोग क्या है कि हम कोई भी डाइल्यूशन बना करके रखते ही नहीं। हमारी जितनी भी टीम काम कर रहे हैं, वो हम लोग डाइल्यूशन बना करके बिल्कुल नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली रेडी टू यूज का हम लोगों का एक सिस्टम है। हम क्या करते हैं कि हम 30 ml में मेडिसिन उसको देते हैं, हर पेशेंट को 30 ml की बोतल में हम मेडिसिन देते हैं, जो कि हमारी 7 days के लिए होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमको स्ट्रॉन्ग देना होता है, यानी कि आप कह सकते हैं इसको फर्स्ट डाइल्यूशन किसी को देना है, तो हम इस 30 ml में उसके 10 ड्रॉप डाल देते हैं। माइल्ड देना होता है, यानी कि अगर सेकंड देना होता है तो 5 ड्रॉप डाल देते हैं। लाइट देना होता है, यानी कि अगर थर्ड डाइल्यूशन देना होता है तो हम उसकी 1 ड्रॉप डाल देते हैं 30 ml में। ये हमारा 30 ml सेम ही रहता है और 7 दिन तक ही चलता है। बस यहीं से हम लोग उसको कंट्रोल करते रहते हैं। और ज्यादा लाइटर देना होता है तो हाफ ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग की जगह वेरी स्ट्रॉन्ग देना होता है तो हम उसको 20 ड्रॉप कर देते हैं। तो हम तो कोई भी जो है डाइल्यूशन बना करके ही नहीं रखते। और जो भी हमारी टीम है, जितने भी हम लोग हैं, सबको एकदम से जो है हाई लेवल पे सबकी प्रैक्टिस है। बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं, कोई पेशेंट ऐसा नहीं होता जिसको हम कहें कि वो पेशेंट हमसे ठीक नहीं हो रहा। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे सबकी ओपीडीज चल रही हैं। कोई भी हम लोगों के प्रैक्टिस में कोई भी 100, 200 या 30 इन डाइल्यूशन के अंदर हम लोग कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेटी ने तो बस फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ही यूज किया था, क्योंकि आप जब जैसे आप अगले आगे डाइल्यूशन के ऊपर जाते हो, तो मेडिसिन का कंटेंट जो है फिर वो उस डाइल्यूशन के अंदर आपको नहीं मिलेगा। फिर आप वो धीरे धीरे करके कहाँ पहुंच जाते हैं, हम लोग होम्योपैथिक स्टाइल में पहुंच जाते हैं। हमें अपने आप को होम्योपैथी से बिल्कुल अलग रखना है। वरना वैसे ही जो है वो होम्योपैथिक वाले क्लेम करते हैं कि भाई आप तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कुछ नहीं है, वो होम्योपैथिक में से ही निकली हुई है, होम्योपैथिक का ही ऐसा पार्ट है। ऐसा जो है वो लोग होम्योपैथिक वाले बोलते हैं। और बहुत सारे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं हमारे, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं सर हम हाँ होम्योपैथी के जैसा ही तो है सब कुछ। नहीं, बिल्कुल सेपरेट है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज टोटली सेपरेट फ्रॉम होम्योपैथी। ठीक है। अभी आज के इस टॉपिक के ऊपर किसी के भी कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग सर, मैं एक क्वेश्चन करूं? सर डॉक्टर रविरल हियर। गुड मॉर्निंग सर। Yes, sir. Please go ahead, sir.
Am I audible? हुडा सर से क्वेश्चन है मेरा सर, ये हम लोग D1 और D2 यूज नहीं करते हैं, एक चीज क्यों? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, हमारी जो मेडिसिन होती है नेट जूस की, वो 1:9 के रेशियो से हम करते हैं या 147 के, और इसमें क्या फर्क होता है? सर हम D1 भी यूज कर सकते हैं और D2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो यह है कि जो इस पेजरिक का जो प्रोसेस है उसके अंदर सर D1 और D2 होता ही नहीं है। ओके, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन की बात है डाइल्यूट करके मेडिसिन देने की, 1:9 से करें या फिर 199 से करें, डेसिमल स्केल से करें या सेंटिमल स्केल से करें, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज को डेसिमल स्केल से करेंगे तो आपको मान लीजिएगा वहां पर जो आपका सेकंड डाइल्यूशन हो गया हो, और वही मेडिसिन आपने सेंटिमल स्केल से बना दिया तो वो आपका थर्ड डाइल्यूशन हो गया, क्योंकि डेसिमल स्केल से बनाने के लिए आपने 1 ml में 9 ml मटेरियल डाला है, तो आपका 10 ml तैयार हुआ है। और सेंटिमल से अगर आपने बनाया तो 99 में आपने 1 ml डाला है, तो वहां पर आपका जो है वो 100 ml तैयार हो गया। वो जो 100 ml का वो इक्वल टू डेसिमल स्केल से अगर देखेंगे तो उसके लिए वो सेकंड डाइल्यूशन के बराबर होगा उसका वो। Your voice is muted, sir. Please unmute, sir. Audio has gone. मेरी वॉइस म्यूट है? Not नहीं, able to hear, sir. no, I can listen. I can. It is audible, sir. For me, it is audible. सो और हमने जो इसको पढ़ा है डाइल्यूशन को, जितना पढ़ा है मेटी को और क्रॉस को जो पढ़ा है, वो सर उन्होंने कोई डाइल्यूशन का फंडा इतना ज्यादा नहीं दिया है, क्रॉस ने तो खास करके। वो बोलता है कि ग्लोबुल्स वो यूज कराता है, अपनी बारीक ग्लोबुल्स होती है उनकी, तो उसने डोज जो उसकी रखी हुई है 10 रखी हुई है कि 10 ग्लोबुल्स आपको लेनी है, पेशेंट को देनी है एक बार में। वो कहता है कि अगर मान लो लाइटर देना है तो उसको 5 ग्लोबुल्स दे दो, और लाइटर देना है तो उसको 1 ग्लोबुल दे दो। जो ऑर्गन है उसके सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली मेडिसिन देनी है। अगर कोई ऑर्गन हाइपर फंक्शन में हो रहा है, मीन्स उसको अभी बीमारी नई नई सी है, तो ऑर्गन के अंदर उतना ज्यादा कोई जो है वो डैमेज नहीं हुआ है फंक्शन उसका, ठीक है, तो वहां पर बहुत लो क्वांटिटी की मेडिसिन से काम हमारा चल सकता है। तो वहां पर वो बोलता है कि एक या 2 ग्लोब्यूल्स दे दो। अगर लगता है ऑर्गन आपका ज्यादा जो है वो डीप में चला गया, ज्यादा जो है वो हाइपो हो गया, फेलियर में जा रहा है, तो नॉर्मल में जा रहा है तो आपने 5 ग्लोब्यूल्स दे दिया, ज्यादा जा रहा है तो उसने बोला कि 10 ग्लोब्यूल्स दे दो। तो ठीक है, हम लोग जो थैंक है यू। वो कोई भी डाइल्यूशन बना करके नहीं रखते। हम तो खाली जो है पेशेंट आया तो 30 ml की बोतल में उसको देना है, और 10 ड्रॉप डाल दिया या 5 डाल दिया या फिर 1 डाल दिया। रेयर केस में जो है वो 10 की जगह 20 ड्रॉप कर देते हैं, और 1 की जगह हाफ ड्रॉप कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई D2 नहीं देना है या D3 नहीं देना है, और बोलते हैं भाई मान लो कोई क्रूड है वो नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? अगर आप उसी का काढ़ा बना करके देते हो तो काढ़ा कितना क्रूड है आपका? यस, वही करेक्ट, तो हर वही तो हर्ब है, उसी को आपने फर्मेंट किया है, उसी को उसने फर्मेंट किया है, करेक्ट, तो उसको करेक्ट। अगर आपने D2 या D1 या कोई और क्रूड उसका पी लिया पेशेंट ने, तो क्या वो क्या कोई जहर है क्या वो? हाँ, ये बात सही है कि जब आप उसको डाइल्यूट फॉर्म में लोगे तभी उसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के स्टाइल में होगा। जब आप कोई भी चीज को क्रूड फॉर्म में लोगे तो उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वर्क करेंगे बॉडी के ऊपर। जब आप डाइल्यूट करके लोगे तो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक एनर्जी के साथ में वर्क करेंगे बॉडी के ऊपर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये तो वेरी आप दोनों सकते हो। वेरी नाइसली एक्सप्लेन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर। बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत आसान तरीके से भी कर दिया काम। बहुत सारे डाइल्यूशंस बना के नहीं रखना है, और बहुत अच्छा चीज आपने बता दिया है कि 30 ml में अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ डिसीज आप उतना ड्रॉप्स मिलाइए और अपने पेशेंट को दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Good morning, sir, and good morning, everyone. I'm Dr. Mansi from Delhi. Okay. Sir, I need to ask one question, which I'm Yes. facing a lot. There are majorly 2 patients which are very difficult to deal with. One is the cancer one, and the second is diabetic patient. Yeah.
इन डायबिटीज आई फाउंड दैट पेशेंट जो है परहेज नहीं कर पाते हैं सर, और उनका डायबिटीज बहुत वेरी करता है. एंड आई हैव डेल्ट विद अ पेशेंट, शी इज हैविंग अ डायबिटीज सिंस 5 years. एंड मॉर्निंग का जो उनका अर्ली मॉर्निंग इज फास्टिंग रहता है, वो थोड़ा कम रहता है, supposedly at 5 o'clock. Then she measured it like 8 o'clock with fasting only. She doesn't eat anything. It comes to like 130 से सीधा 180 190 पे वेरी कर जाता है without eating anything. So I am not getting her physiology and how to deal with this condition, because I'm facing this with 2 patients, and I should need to know about this. And the second question, sorry, constantly is like I'm dealing with cancer patients as well. और उनका जो obviously deterioration हो गया organ का, तभी वो cancer patients हुए. But सर होता क्या है कि they are majorly dealing with the pain firstly, and then there's a pus formation. pus जो है उनका regular basis पे बनता है, वो हम कंट्रोल तो कर पाते हैं, बट मुश्किल हो जाता है सर बहुत ज्यादा इन 2 पेशेंट्स को डील करना. कैसे किया जाए और किस किस बेसिस पे हम इसको टेपर करें मेडिसिन को, और उस डाइल्यूशन को हम कहाँ से शुरू करके किस तरह से लेके आए अगर वो ठीक भी हो रहे हैं और अगर बिगड़ भी रहे हैं तो. देखिए, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका डायबिटीज से रिलेटेड था, ठीक है. तो डायबिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो डायबिटीज का जो फर्स्ट ऑर्गन है जिसको हम डायरेक्टली समझते हैं, वो हमारा फर्स्ट ऑर्गन जो है वो है पैनक्रियास. जी. तो पैनक्रियास जो है वो डायबिटीज के अंदर क्या है कि पैनक्रियास हमारा हाइपो फंक्शन में जा रहा होता है, जी. ठीक है. और ये क्रॉनिक स्टेज है जो कि एक दिन में नहीं बनती है. श्योर. स्लोली स्लोली हमारा डायबिटीज जो पैनक्रियास है वो हाइपो फंक्शन में जा रहा होता है. अब हमें किसी भी डायबिटीज के पेशेंट को ठीक करने के लिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी डायबिटीज के पेशेंट ठीक किए हैं, बहुत सारे पेशेंट क्योर कर दिए हैं, जी. ठीक है. हम लोगों का डायबिटीज के ऊपर एक पूरा एक ग्रुप भी है, डायबिटीज ग्रुप के नाम से. तो डायबिटीज में पेनक्रियाज में हमें ये देखना है कि इसका जो पेशेंट का पेनक्रियाज है वो डिस्टर्ब कौन से ऑर्गन की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, जी. ठीक है. कोई भी ऑर्गन डायरेक्टली अपने आप ही जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, किसी दूसरे ऑर्गन की वजह से भी वो डिस्टर्ब हो जाता है, जी. ठीक है. डायबिटीज हमारा जो सॉरी पेनक्रियाज है वो हमारा डिस्टर्ब हो सकता है लीवर की वजह से, जी. वो हमारा डिस्टर्ब हो सकता है किडनी की वजह से, और जी. वो हमारा डिस्टर्ब हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से, या वो हमारा डिस्टर्ब हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट की वजह से. सारे ही पेशेंट्स के अंदर आप पहले तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा कि जी. इसको जो ये पेनक्रियाज डिस्टर्ब हुआ है वो किस ऑर्गन की वजह से डिस्टर्ब हुआ है. Okay, so she's having a cardiomegaly as well. Now, recently detect हुआ है उनका. अब कार्डियोमेगाली रिसेंटली डिटेक्ट हुआ है, तो कार्डियोमेगाली मेगाली कहते हैं किसी भी चीज के बढ़ने को, तो जी. कार्डियोमेगाली भी जो है मैडम एक दिन में नहीं हुआ होगा उसका. जी. इसका मतलब यह है कि उसके पीछे फिर कुछ और छुपा है. अब आप उसकी और हिस्ट्री लीजिएगा तो या तो आपको उसके लीवर के अंदर डिस्टर्बेंस मिलने वाला है आपको, या जी. किडनी में मिलने वाला है, या फिर उसको कोई लंग्स का इशू मिलने वाला है. आपको उस एग्जैक्ट ऑर्गन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है उस पेशेंट के. Okay, sir, she's having issues in liver. प्लीज. फैटी और लिवर है. बाकी तो स्कैन ठीक आए हैं सर उनके. ओके, फैटी लीवर है पेशेंट को, जी. ठीक है. अब इस केस के अंदर आपको क्या करना है, जी. 3 ऑर्गन्स के ऊपर उसके काम करना है. जी. आपको उसके लीवर पे काम करना है, आपको उसके जो है वो हार्ट पे काम करना है, और आपको उसके स्प्लीन पे काम करना है, ठीक है. और जी. थोड़ा सा अगर आप इसमें और भी ज्यादा साइकोलॉजिकली उसका जब स्टडी करेंगे तो जी. कहीं ना कहीं वो पेशेंट जो है वो किसी क्रॉनिक स्ट्रेस का पेशेंट हो सकता है. ओके. लीवर जो है वो हमारे फूड के साथ साथ हमारे जो थॉट्स होते हैं उसको भी डाइजेस्ट करता है. ओके. हाँ. अब हम जो है वो इसके अंदर जो ये 3 ऑर्गन्स हैं हमारे, इन तो तीनों ऑर्गन्स को ट्रीट करेंगे, ठीक है. और तीनों ही ऑर्गन क्या है, हाइपो कंडीशन में. जी. तीनों ही ऑर्गन जो है हमारे वो हाइपो कंडीशन में है. प्लस जी. साथ में पेशेंट का ब्लड प्रेशर वगैरह भी देखेंगे, और उसका किडनी प्रोफाइल भी आप देखिएगा. मुझे लगता है कहीं ना कहीं किडनी के ऊपर भी उसके इम्पैक्ट चल रहा होगा.
जी, ब्लड प्रेशर हाई रहता है सर। बीपी उनका हाई रहता है पेशेंट का। जी जी। और किडनी फंक्शन देखा है आपने? वो इट्स वर्किंग फाइन, केएफटी क्लियर है सर। सीबीसी में हीमोग्लोबिन बहुत लो है, 6 पॉइंट समथिंग रनिंग उसमें है, 7 और 8 पे वेरिएट करता है हमेशा। एचबी अगर उसका लो चल रहा है तो हो सकता है किडनी फंक्शन उसका धीरे धीरे करके वो भी डाउन जा रहा हो। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक तो लीवर को स्टिमुलेट करना है। लीवर की मेडिसिन हमारे पास स्प्रोफ्लोसो 5 एंड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है। जी सेकंड, हमें हार्ट के ऊपर काम करना है। हार्ट की मेडिसिन हमारे पास एंजियोटेको 3 है। थर्ड, हमको जो है वो स्प्लीन पे काम करना है। स्प्लीन की मेडिसिन हमारे पास F1 और S2 है। जी ये 3 कंपोजिशन आप उसको बना करके दे दीजिएगा। एक बोतल में आप उसको S5C5G दे दो। एक बोतल में आप उसको S2C2F1 एंड येलो इलेक्ट्रिसिटी दे दो। और मॉर्निंग इवनिंग आप उसको जो है एक बोतल में एंजियोटेको 3 दे दो। तीनों ही आप उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग में दे दीजिएगा और पेशेंट को डेफिनेटली जो है वो डायबिटीज के अंदर रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सर। सर और जो पस फॉर्मेशन कांस्टेंट रहता है, इसको कैसे कवर किया जाए, किस डाइल्यूशन के साथ? पस फॉर्मेशन कहाँ रहता है? कैंसर पेशेंट्स में, जैसे सलाइवरी ट्यूमर के पेशेंट आई एम डीलिंग राइट नाउ। कैंसर पेशेंट्स में जो पस फॉर्मेशन रहता है वहां पर किसी भी बॉडी के अंदर कहीं पर भी पस फॉर्मेशन रहता है, उसको कंट्रोल करने में जो है वो लीवर का ही जो है वो रोल रहता है। ठीक है। जी और जी कैंसर जब होता है जब हमारी जो सेल है उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा डाउन हो गई होती है। जी जी ठीक है। तो वहां पर डिजीज आपको, सॉरी, जो मेडिसिन चलानी है वो मेडिसिन पॉजिटिव ही मेडिसिन चलानी है, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चलानी है। और जी मोर स्ट्रॉन्ग की भी जरूरत वहां पर आपको पड़ेगी। जी और इसके लिए लीवर की मेडिसिन चलानी है। ठीक है। जी। और जो लोकल ऑर्गन है उसकी चलानी है। जैसे कि कैंसर है वो किस ऑर्गन के अंदर है, तो एक सलाइवरी, आप ये सलाइवरी ट्यूमर है सर, सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है सर। सिलेवरी ग्लैंड ट्यूमर है, तो आप वहां पर उसको कुछ मेडिसिन जो है वो P2 और C2 चला दीजिएगा। जी ठीक है, स्ट्रॉन्ग में। और S5C5 और G चला सकते हैं उसको स्ट्रॉन्ग में। ठीक है सर। ठीक है। जी डायग्नोसिस बनाना मरीज के हमारे लिए सबसे पहला काम है। बिल्कुल सर। और इस डायग्नोसिस के लिए हम लोग जो है वो अपना 5 एलिमेंट्स का पूरा एक सेशन चलाते हैं। 8 डेज का सेशन होता है 5 एलिमेंट्स के ऊपर, कि हम किस तरीके से सिम्टम्स को लेकर के हम कैसे ऑर्गन तक पहुंचे, जी जी कि ऑर्गन हमारा हाइपर हो रहा है या हाइपो हो रहा है, और क्या सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिले हैं, फिर हम इसमें कैसे ऑर्गन तक पहुंचे। उसके लिए हम लोग एक पूरा एक 8 डेज का एक सेशन हमारा जो है वो अलग से भी रहता है। जी। 2 सितंबर से स्टार्ट होगा न्यू बैच। Okay, sir. So, थैंक sir, यू। I'll join that definitely. Thank you so much, sir. And थैंक thank यू। you, everyone. थैंक यू। Thank you. Uh, all the participants request to all the participants. Huda sir will be able to answer all the questions. We are happy to answer any particular case studies or special cases. But however, in the interest of time, request you to ask questions related to the session. Any questions related to these case studies or special cases, we are having daily Monday to Thursday 8 to 9 a.m. A question and answer session every day. Huda sir will join and answer those questions. If any specific cases, request you to join that session and ask. This session, please ask any questions related to this session topic alone. That's my humble request. Thanks for your understanding cooperation. CS Das ji, please go ahead with your question. Hello. प्रणाम सर। हेलो। जी बोलिए। हाँ सर प्रणाम। बोल रहे हैं सर, बहुत दिनों से एक सवाल मन में चल रहा है और अभी फिर से आ गया सर। अभी जैसे आप बताएं सर, स्ट्रॉन्ग में 10 ड्रॉप, माइल्ड में 5 ड्रॉप और लाइटर में 1 ड्रॉप 30 ml में हमको DW के साथ डाइल्यूट करना है।
तो अगर हम वहाँ पे एक मेडिसिन देते हैं तो 10 ड्रॉप 30 ml में देंगे सर, 2 देते हैं तब भी 10 ड्रॉप देंगे, लेकिन 30 ml में 20 ड्रॉप जाएगा सर, और अगर 3 देते हैं तो 30 ml में फिर 30 ड्रॉप जाएगा। जी। तो इसका थोड़ा हमको एक्सप्लेन करके समझा दीजिए सर। इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, बस जितना भी आपको मेडिसिन देनी है वो उतने का ही जो है वो 10 ड्रॉप 5 ड्रॉप या 1 ड्रॉप जो भी डालते हैं वो डालना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमें कम से कम मेडिसिन को ही मिक्स करना है। ऑलरेडी हमारी एक मेडिसिन के अंदर 7 से 8 प्लांट ऑलरेडी मिक्स है। जी जी अब अगर आपने एक साथ जो है वो 5 मेडिसिन मिला दिया तो 8 पंजे 40 प्लांट एक साथ आप पेशेंट को देना चाहते हैं। जी, वो मैटी तो जी ने गड़बड़ है। मैटी जी ने खुद कॉम्प्लेक्स बना करके दिया है, अब हम उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने में लगे हैं। जी, 1 से 2 मेडिसिन एनफ होती है। एक अगर से आपको दो। ज्यादा देना है तो आप दूसरी बोतल के अंदर उसको दे दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, 1 से 2 ही देना है सर, और 1 से 2 में तो फिर गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। जी। हाँ सर, ये जो आपने अभी बताए तो इसके डोजेस कैसे देना है सर? डोजेस किस चीज के? जो 30 ml सॉल्यूशन आपने बनाया है इसका? हाँ सर, हाँ सर। 30 ml जो हमने बनाया है 7 डेज के लिए बनाया है। 7 days के लिए यानी 10 ड्रॉप TDS। नहीं, भाई आप जो है वो 30 ml दे रहे हैं जी सर। 7 डेज के लिए ना, ओके। ठीक है। तो 30 ml में 1 ml में लगभग 20 ड्रॉप होती है। जी सर। 30 ml में कितनी हो गई? 600। 30। हाँ हाँ हाँ। 600 ड्रॉप हो गई ना जी सर। 7 डेज के लिए। तो अगर हम हाँ 600 ड्रॉप को 7 से डिवाइड कर दें तो 1 डे की डोज निकल आएगी। हाँ। तो लगभग ये हो जाएगी हमारी 84 ड्रॉप एक दिन में। 84, राइट। ठीक है, अगर हम इसको 84 ड्रॉप को एक दिन में देना है हमको, ठीक है, हाँ दिन में हाँ 4 बार देना है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 20 हाँ। ड्रॉप हो जाएंगे 4 बार, ठीक है। 20 दिन ड्रॉप में 4 तीन बार। बार दिन में 3 बार देना है तो लगभग मोटा मोटी 25 ड्रॉप हो जाएंगे। दिन हम्म में 6 बार देना है तो 15-15 ड्रॉप हो जाएंगे। इस तरीके से हम्म। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक दिन में लगभग आपको 84 ड्रॉप देना 84 ड्रॉप देना। है। ठीक है। जी सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कभी कभी ये हाइपो और हाइपर में ही कंफ्यूजन रहता है। जैसे कंफ्यूजन सर कहाँ है? अगर अब कंफ्यूजन कहाँ है आप? सर जैसे ये जो पस निकलने वाला एक केस अभी मैम ने बताया ये सर, वैसे तो सर जो अभी पस निकलने वाला जो केस बताया था मैम ने, हम्म। तो सर वहां पे ऐसे पस निकल रहा है, तो सर ऐसे वो हाइपर कंडीशन है, लेकिन बिकॉज दैट इज ड्यू टू सम हाइपो कंडीशन ऑफ सम ऑर्गन, तो सर यहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूजन होता है। नहीं नहीं, पस निकल रहा है ना कहीं पर भी, अगर पस निकल रहा है, पस कहाँ से क्यों निकलेगा? जब तो आपकी जैसे सेल डेथ हो जाएगी हाँ सर। तभी पस निकलता है ना। यस जब सर। जब सेल डेथ है तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर तो हम उसको स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन देंगे ना, ओके सर। क्योंकि ओके। सेल ऑलरेडी निगेटिव हो रही है ना, सेल की एनर्जी क्या हो रहा है? निगेटिव हो रही है, तो वहां पर क्या करेंगे? हाँ। स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन देंगे। ओके। अच्छा सर, अंडरस्टूड सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मुझे एक मॉर्निंग। चीज जानना है कि जैसे आपने अभी डोजेस के बारे में बताया, तो क्या वो एक्यूट और क्रॉनिक और हाइपर और हाइपो के अकॉर्डिंग चेंज होगी? लाइक हाइपो है तो डायरेक्ट, हाइपर है तो कुछ ऐसा चेंज होगा सर? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया था आपको प्रेजेंटेशन में कि अगर आप किसी को लाइटर डाइल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है? गैप कम करना है, मेडिसिन का गैप कम करना है, मतलब मेडिसिन कम से कम आप उसको 6 बार दे दीजिएगा दिन में, ठीक है। या अगर उसकी कंडीशन माइल्ड है पेशेंट की, तो आप उसको मेडिसिन को दिन में 3 बार दे दीजिएगा। और अगर क्रॉनिक केस है कोई, ठीक है,
और आप स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे रहे हैं आप उसको, तो आप उसको 2 टाइम्स भी दे सकते हैं। और अगर लाइटर डाइल्यूशन दे रहा है, गैप कम करना है, 6 बार देना है, और भी अगर लगता है तो आप उसको मेडिसिन को 8 बार में भी दे सकते हैं। क्योंकि किसी को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, आपको हर आधे घंटे के बाद मेडिसिन देनी पड़ सकती है। वूपिंग कफ हो रहा है, आपको हर आधे घंटे के बाद मेडिसिन देनी पड़ सकती है। जैसे टिपिकल डायरिया में, हाँ, एक चम्मच हर 10 मिनट में एक चम्मच दिए जाओ। बिल्कुल। तो दिन में 84 ड्रॉप जाना है, यही सिद्धांत है इसमें। उसको उसी के अकॉर्डिंगली हम डिवाइड कर लेंगे, डोज की क्वांटिटी कम कर लेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। यस। सर डायरेक्ट टंग भी डाल सकते हैं सर पे हमारे मेडिसिन? डायरेक्ट टंग के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम मेडिसिन को पानी के साथ में मिला करके देते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बॉडी के अंदर पूरा जो है वो एकदम टंग से एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचती है। क्योंकि टंग पे हम डालते हैं कोई मेडिसिन तो वो सलाइवा के जरिए हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है। ओके सर। सर लुकोंग वाटर में ही देना है या नॉर्मल वाटर में भी दे सकते हैं सर? नॉर्मल वाटर में दे सकते हैं। ओके ओके। लुकोंग वाटर भी में भी जरूरत नहीं ना सर? नहीं, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर वो मैटर नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल our वाटर में आप दे medicines सकते हैं। are made by distillation process, right? नॉर्मल वाटर में आप दे सकते हैं मेडिसिन। Yes, नॉर्मल वाटर में देना बेस्ट है। अगर गर्म पानी भी देना चाहते हो, गर्म पानी में दे दो। लेकिन हर बार गर्म पानी पेशेंट्स को नहीं मिलता ना सर। आप नॉर्मल वाटर में दीजिए ना, नॉर्मल वाटर दे दो। इसीलिए ही नॉर्मल वाटर एडवाइस किया ना आपको। मुझे देखिएगा, भी जितना आप आसान बनाएंगे मेडिसिन को उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको प्रैक्टिस के बारे में ही बता रहा हूँ। एक ग्रुप के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, अभी शायद 2 दिन पहले ही चल रहा था कि भाई जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो उसको पब्लिक ज्यादा लाइक कर रही है। पब्लिक ज्यादा लाइक करती है। हमने कहा ठीक है, लाइक पब्लिक ज्यादा करती है, लेकिन उन्होंने उसको इजी कितना बनाया है। किसी को बुखार आता है, फट से मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल लेता है, खा लेता है 1 रुपए की। यस यस हाँ सर। पेन हो रहा होता है, 1 रुपए की गोली लेता है, खा लेता है। खा लेता है हाँ। वो उसके क्या साइड इफेक्ट है, क्या आफ्टर इफेक्ट है, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। लेकिन उन्होंने अपनी मेडिसिन को बहुत सस्ती कीमत में और कस्टमर के अप्रोच तक उसको बना दिया। हाँ सर हाँ सर। अब अगर आपने कोई पेशेंट को मेडिसिन एडवाइस करी और साथ में आपने उसके उतने ज्यादा नियम बना दिए कि वो उस नियम के अकॉर्डिंगली वो आपकी मेडिसिन ले ही नहीं पाया, तो फिर वो क्या आपसे मेडिसिन लेने आएगा? नहीं आया सर, नहीं आता। हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या काम करता है, कितना फ्री है, उसके अकॉर्डिंगली। अगर मान लीजिएगा एक बंदा दिन में 2 बार मेडिसिन ले सकता है, तो बोल दो ठीक है भाई, 2 बार मेडिसिन लेनी, सुबह शाम में मेडिसिन बना दो उसको। हाँ सर एलोपैथी का तो इजी कर दिया हमारा तो चीजों पूरा को आपको इजी करना पड़ेगा पेशेंट के लिए, सबसे पहले पेशेंट के लिए इजी करना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल सही सर। इससे कि कंफर्टेबली कोई भी पेशेंट हमारी चीजों को खरीद सके, खरीद सकता और ले सकता भी सर। या राइट सर। हमारी चीजें सस्ती होनी चाहिए और उसके जो एक्सेस है वो बहुत ज्यादा इजी होना चाहिए, और मेडिसिन को कंज्यूम करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा इजी होना चाहिए, जिससे कि वो कभी भी उसको कंज्यूम कर सके। ओके सर राइट सर। थैंक यू वेरी मच सर। उसके मैं वैसे ही सर ये सीरम क्रिएटिनिन लेवल पेशेंट्स को विद इन 1 वीक में नॉर्मल कर दिया सर मैंने। कौन सा? सीरम क्रिएटिनिन लेवल सर 2.3 था सर उसका। अच्छा। हमारा मेडिसिन के डाइल्यूशन आप बताए सर। वेरी स्ट्रांग एक देना और उसका टेस्ट क्राइविंग के अकॉर्डिंग टू कंडीशंस पकड़ के और देना बोलते हो। उसका टेस्ट क्राइविंग आके मेटल डिस्टर्ब था सर। और हमने वाटर को हाइपो स्ट्रांग में वेरी स्ट्रांग में दिए सर। और मेटल का स्ट्रांग में वेरी स्ट्रांग में दिए सर। विद इन 1 वीक में सीरम क्रिएटिनिन लेवल 1.9 आ गया सर। चलिए, आज जो है वो प्रीतम जूम आज पैक चल रहा है भाई। कुछ लोगों का फोन मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें जगह नहीं है किसी के आने की। कुछ लोग कोई डबल हाँ आईडी सर। से तो ज्वाइन नहीं हुए हैं। नहीं सर, ये लिमिट 100 पहुंच गया, इसलिए एक्चुअली मैंने ज्वाइन। मैंने जो ये जूम परचेज कर रखा है वो 100 की लिमिट का ही परचेज कर रखा है।
तो 100 लिमिट क्रॉस करने के लिए वो ज्वाइन करना मुश्किल हो रहा है। नहीं, अगर कुछ लोग ऐसे हो जो डबल आईडी से ज्वाइन करे हुए हो तो वो प्लीज जो है एक आईडी से लीव कर दें, जो लोग डबल आईडी से हैं। बहुत अच्छी बात है कि पूरा आज पैक चल रहा है जो सर पेन भी हम हाइपर कंडीशन में लेंगे ना, बट अगेन सर उसमें भी कोई ऑर्गन तो हाइपर कंडीशन में होगा ही। ये शिल्पा सोनी जी बोलिए दोबारा से। सर पेन को हम हाइपर कंडीशन लेंगे ना, बट पेन सर को पेन अगेन को हाँ सर पेन को। कौन सा पेन? पेन सर कोई भी अगर बॉडी में पेन हो रहा है नहीं, तो डिफरेंट सर डिफरेंट काइंड ऑफ द पेन इज डिफरेंट। मान लीजिए आपको अच्छा एब्सिस बन गया, आपके एब्सिस में पेन हो रहा है, ओके ठीक है, तो पेन या भी मान लीजिएगा आपको कोई हर्ट हो गया, गिर गए आप, चोट लग गई है, इन्फ्लेमेशन आ गए, वो पेन हो रहा है आपके। ओके तो डिफरेंट काइंड ऑफ द पेन है और हम उसको पेन के अकॉर्डिंगली ही मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे पास पेन की तो कोई मेडिसिन नहीं है, हमारे पास तो मेडिसिन ऑर्गन की है। हाँ सर तो बस हमें क्या करना है, सीधा एकदम ऑर्गन पे पहुंचना है, उस ऑर्गन की मेडिसिन उसको देनी है। ओके सर ओके सर। सर सर तो ये ऑर्गन की मेडिसिन हम पेन में कैसे सर ऑर्गन का फंक्शन क्या हम लेंगे, हाइपो फंक्शन लेंगे इसमें? मोस्ट ऑफ द पेन में ऑर्गन के फंक्शन हाइपो होते हैं, क्योंकि पेन जो होता है वो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। जब तक यस इन्फ्लेमेशन सर नहीं होगा, जब तक पेन नहीं आएगा। यस सर। सर अर्थराइटिस में हम क्या डिटेक्ट करेंगे? कोई सा भी पेन हो कौन मैम, सा? आईटीएस लगाए। आईटीएस का मतलब क्या होता है? आईटीएस का इन्फ्लेमेशन मतलब है सर। इन्फ्लेमेशन। यस सर अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, लारिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। यस सर पेन यस हमारा सर। तभी भी आएगा कोई भी, तो वो इन्फ्लेमेशन से ही आएंगे। हाँ, अब अर्थराइटिस अगर पार्टिकुलर डिजीज की बात करते हैं हाँ तो ये बोन से रिलेटेड डिजीज है। ये जो पेन है, यस सर ये जो इन्फ्लेमेशन है बोन का है, और बोन जो टिश्यू है हमारा वो किडनी से रिलेटेड है। यस सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किडनी को ट्रीट करते हैं अर्थराइटिस में। ओके सर जब हम ओके किडनी सर को थैंक ट्रीट करते हैं तो हमारा अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। अभी हमने 2 पेशेंट की और किए हैं अर्थराइटिस के, उनका यू। तो आर ओके फैक्टर सर। काफी बढ़ा हुआ था। इसके लिए हम अच्छा लोग एक सर। अलग से मतलब कुछ क्लासेस हम लोगों की लगती हैं, जो कि हाँ 5 सर एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग डायग्नोस कैसे बनाना है आपको इसका, तो उसके लिए यस सर I would like to join sir because I'm also an acupuncturist. So sure. सेकंड सितंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सैटरडे से क्लासेस उसकी। Okay okay thank you sir. हेलो सर। जी हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं डॉक्टर संपत सपकाल बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी संपत जी बोलिए। सर जी ये 2 सितंबर से जो अपना क्लास चालू होने वाला है 5 डायग्नोसिस इवेंट का, उसे मुझे ज्वाइन करना है, तो क्या करना पड़ेगा सर उसके लिए? उसके लिए आपको जो है वो उसकी फीस है वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। हाँ सर, कहाँ पे करनी पड़ेगी, कैसा करना है, उसके लिए कुछ डिटेल नहीं मेरे पास में। तो आपको जो है फीस जो है वो आपको फोन पे या जीपे करना पड़ेगा। सकपाल जी माझे हाँ नंबर सर। डिस्प्लेवर आहे, मला प्राइवेट मैसेज करा। कौन से नंबर पे करना सर? मैं अभी आपको जो टीम है लास्ट में प्रोग्राम की जो टीम है हमारी, उस टीम के सबके नंबर दे दूंगा, ठीक है। डॉक्टर गिरधर ठीक है गोपाल जी है, डॉक्टर संजीत है, डॉक्टर जियाउल हसन है, ठीक है, और सर। इधर इस टाइम तो टीम में शायद ये लोग, डॉक्टर जसविंदर है हाँ जो हाँ, प्रोग्राम के अंदर है। इनमें से किसी के साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। हेलो Dr. Huda, good हेलो डॉक्टर morning. साहब। Good morning, Dr. हेलो Huda. गुड मॉर्निंग माता जी। Yeah, I think I mentioned once about the patient who could be in coma or on ventilator. तो उनको कैसे दिया जाएगा? उनको तो जो कोमा में पेशेंट है या वेंटिलेटर पे है उसको हम लोग जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही देंगे। उसको टॉप ऑफ द हेड पर दे दीजिएगा और फीट सोल के ऊपर दे दीजिएगा, या फिर चेस्ट के ऊपर भी दे सकते हैं उसको, आप 3 जगह से आप दे दीजिए उसको, क्योंकि अगर Chest, हमने elbow and feet. हाँ, और हम लोग क्योंकि जो है वो अगर मान लीजिए कुछ भी आप ओरल देते हैं तो वो सॉलो नहीं कर पाएगा और फिर वहां पर वो कलेक्ट हो जाएगा, तो Yes, पेशेंट yes. वैसे ही जो है फिर परेशानी हो जाएगी पेशेंट को। बहुत परेशानी हो जाएगी because already उनको निमोनिया है, यस यस यस, aspiration निमोनिया, हाँ हाँ तो हाँ, swallow तो कर नहीं पाते बिल्कुल बिल्कुल, and पेशेंट yeah, एस्पिरेट कर जाएगा।
You said you mentioned once, एक बार मेंशन किया था कि आप आईवी भी दे सकते हैं, वो कैसे हो हाँ सकता है? देखिएगा, मान लीजिएगा अगर हम लोग किसी यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, हाँ हाँ, तो कई बार जरूरत पड़ती है तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अच्छा। But these medicines are differently made for injection, जैसे एलोपैथी में होता है, इंजेक्शन के लिए अलग होता है, हाँ differently made. उसके लिए एक्चुअली इसी वजह से अभी तक हम लोग बनाते नहीं है, इसके लिए जो है वो इंजेक्शन के लिए अलग से मेडिसिन बनती है। हाँ, वो definitely. पूरा एक जो है वो हाइजीनिक मेडिसिन होनी चाहिए, पूरा एक अलग Yeah. प्लांट हो, वो एक अलग रूम होता है, उसके अंदर ही वो पूरा मेडिसिन को बनाया Yeah, जाता है। yeah, yeah. हाँ, आईवी देने के लिए या आईएम देने के लिए। Oh, I'll talk to you about my patient later. Okay, thank you. यस यस यस, थैंक यू। हेलो हेलो डॉक्टर डॉक्टर साहब। हेमलता जी जो है वो रिटायर्ड आर्मी कर्नल है, बेसिकली जो है वो मॉडर्न मेडिसिन की डॉक्टर है। जी सर, आपने हेलो डॉक्टर हेमलता जी का इंट्रोडक्शन नहीं कराया ग्रुप में। सर। एक मिनट। जी सर। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। जी गुलाब जी जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, हम लौटते हैं आपकी उस तरफ जो आपने कहा था ना कि अपने डोज को मिनिमाइज किया जाए। जैसे सर दर्द के लिए एलोपैथ ने एक गोली दे दी, एक बुखार के लिए पैरासीटामोल दे दी, तो अगर हम अपनी दवाओं को इस तरह से मिनिमाइज करें तो उसका क्या तरीका हुआ कि उसे एक दो खुराक दी, जैसा वो कहता है हमें कम से कम दवा दीजिए। हाँ, कोई तो भी क्या तरीका निकाला जाए, कोई भी तरीका निकाला जाए, ठीक है, जी, लेकिन ऐसा तरीका हो जो उसके लिए सबसे ज्यादा आसान वाला हो। मान लिया हमें सर दर्द को उसको फौरी रिलीफ देना है, तो हम कौन सी ऐसी दवा, हमारे पास तो कोई मेडिसिन नहीं ऐसी दिखाई देती कि एक उसको दे दें डोज और वो हो जाए यार बुखार उतर जाए। आपके आपके पास तो ऐसी ऐसी दवाएं हैं जो कि मतलब वो एलोपैथिक से भी ज्यादा तेज है। एक डॉक्टर साहब है देहरादून के अंदर, वो सिर्फ जो है वो 5 इलेक्ट्रिसिटी से एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही काम करते हैं, सिर्फ बाहर से लगाने से काम करते हैं। बुखार का जी हाथ में आता है सुबह। वो मेडिसिन को सिर्फ बाहर से लगाते हैं। तो हम लोग बहुत सर सारी मेरी एक रिपोर्ट है सर, एक्सटर्नल मेरी एक मेडिसिन। रिपोर्ट है सर। जी जी और सर। जी सर। हाँ जी। पहले जरा जी गुलाम सर। रसूल जी से बात करने दो, एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारी मेडिसिन को एक्सटर्नल दे सकते हैं। अगर हम अपनी मेडिसिन का, एक्सटर्नल मेडिसिन का ज्यादा प्रचार प्रसार करें मरीजों में बैठ करके, ठीक है, कि भाई हमारी दवाई से लगाने से ठीक हो जाएगा, तो हमारे बहुत सारे लोग लगाने के लिए दवाइयां लेकर के जा सकते हैं, और जी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में ही ये हमारा सिस्टम खड़ा हो सकता है। जी नहीं, कई सारे और एमबीबीएस बहुत भी सारे हैं। लोग इसको लाइक करेंगे कि आप जी जो है जी वो लगाने की मेडिसिन दे रहे हैं उनको, क्योंकि वो जी जी मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी डॉक्टर हेमलता जी भी यहीं पर है, और भी कई मेरे जो है वो इसको जो यूज करने वाले लोग हैं, बहुत सारे केसेस के अंदर हम सिर्फ एक्सटर्नल मेडिसिन दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिएगा हाई बीपी के अंदर हम सिर्फ बोलते हैं बिरू इलेक्ट्रिसिटी से नहा लो तो हाई बीपी ठीक हो जाएगा। अब चूंकि हाई बीपी का पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है किसी अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, वो नहीं चाहता हमारी दवाई लेना, हम कोई दवाई देते हैं तो वो कार्डियोलॉजिस्ट से पूछता है, वो मना कर देता है। लेकिन हम बोलते हैं ये दवाई पानी में डाल के इससे नहा लेना भाई, तो नहाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहा लेगा ना वो। जी नाक से पानी जाता हुआ। तो या आप किसी का आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो आपने प्रमोट किया, मतलब ये एक्सटर्नल जो एप्लीकेशंस हैं वाकई बहुत सही है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। आपने तारीफ की मेरी इस बात की जी कि एक्सटर्नल यूज में बहुत करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, और उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मरीज भी, फिर तो मरीज के लिए बड़ा कंफर्टेबल रहेगा ना साहब, उन्होंने तो नहाने की दवाई दी है, बात खत्म हो गई। जी जी कल को जी आपसे जी किसी ये भी नहीं कह सकता कि आपकी मेडिसिन का साइड इफेक्ट था क्या नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई, मैं तो नहाने के लिए दवाई दी, नहाओ। खाली अगर नहाने से बीपी आपका ठीक होता है तो इससे बढ़िया और क्या बात होने वाली है भाई। जी 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 जी। तो मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। बिल्कुल करिएगा, ये बहुत बड़ा पार्ट है। जी 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 जी। तो आपने मेरा हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया नहीं इस नहीं, काम में। ये बिल्कुल एक इसका ऐसे मान के चलिए आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आधा पार्ट है ये, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। जी जी हमने उसको जो हेलो उस सर, पार्ट को गुड हमने छोड़ मॉर्निंग। दिया है, बड़े वाले पार्ट को हमने छोड़ दिया। जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, सो मेनी थैंक्स। हेलो जी बोलिए। सर, एक पेशेंट है, उसे ब्रेन हेमरेज हुआ था, पेशेंट के ऊपर डिस्कस ऑपरेट मॉर्निंग में ऑपरेट हुआ करेंगे, था। या फिर मॉर्निंग में करेंगे या बाद में करेंगे? अभी सिर्फ डाइल्यूशन के ऊपर किसी का कोई भी क्वेरी हो तो बताइए, डाइल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका या नहीं हुआ? सर हेलो सर। जी सुजाता। हेलो
sir. Yes, जी बोलिए सुजाता। Sir, skin itching. go ahead, Sujata. Substance of skin itching means hypo or hyperfunction of the skin, sir. जी Skin itching, skin. स्किन इचिंग देखिएगा कौन से ऑर्गन के साथ में रिलेटेड है। आपको पहले किसी वाले साहब को या उनके वाले साहब को वैसे तो स्किन इचिंग जो है वो आपका हाइपर फंक्शन ऑफ द लीवर है। Sir, some disturbance is coming. स्किन इचिंग इज हाइपर फंक्शन ऑफ द लीवर। The full body skin itching or sometimes only leg itching, it differs, sir, for patient to patient, or यस is it? पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होता है, उसको आप ऑर्गन के साथ में रिलेट करो और देखो कि ऑर्गन हाइपर हो रहा है या हाइपो हो रहा है। Because sometimes earth works, sometimes wood works. वो पेशेंट, मैंने वही बोला ना आपको, पेशेंट को देखना पड़ेगा कि पेशेंट की क्या कंडीशन है और इसका ऑर्गन क्या कह रहा है। तो अब देखिएगा, बिल्कुल आपने ही जवाब दिया कि सम टाइम वुड हैज वर्क, सम टाइम अर्थ हैज वर्क। हेलो सुजाता। हाँ sir. How to know that whether it's यस यस सिम्टम इज द सेम ना, सिम्टम इज सेम। Yes, sir. Yes, sir. तो सिम्टम्स के ऊपर हमें कभी भी नहीं जाना है। अगर सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आप सारे पेशेंट को अर्थ हेल्थ देते रहोगे तो क्या ठीक होंगे? नहीं होंगे ना। नहीं sir, नहीं. Sometimes even earth will work hyper. यस तो सिम्टम्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। हर सिम्टम्स के पीछे कुछ कंडीशन हाइपर भी हो सकती है, कुछ हाइपो भी हो सकती है। तो हमें उसकी कंडीशंस को देखना है ऑर्गन की, सिर्फ So how ऑर्गन whether की कंडीशन के अकॉर्डिंगली वर्क करना है। our anger is more means whether it is hypo or hyper function of the liver, sir. Because I tried both. Sometimes wood tea works, sometimes wood S works. एंगर जो है वो सिर्फ ये बताता है आपको कि आपका जो लीवर है वो डिसऑर्डर में है। इनमें सम टाइम इट में बी हाइपर और सम टाइम इट में बी हाइपो। उसके लिए आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ेगा, फर्दर क्वेरीज करनी पड़ेंगी पेशेंट के साथ में कि लीवर जो है वो हाइपर में या हाइपो में। It can be both, no, sir. Either this or that. यस ये सिर्फ ये बताता है आपको कि लीवर का इशू है पेशेंट को, एंगर। उसके बाद फिर आपको अगला स्टेप लेना है, वहां पर जाकर के देखना है कि हाइपर में है या हाइपो में है। सर लिकोरिया हाइपर फंक्शन ऑफ द यूटीआई वाटर एलिमेंट। लिकोरिया जो है वो किडनी से रिलेटेड है। सर हाँ वाटर एलिमेंट जो है यूट्रस जो है वो आपका किस चीज से रिलेटेड है? यूटीआई किडनी से रिलेटेड है। वाटर एलिमेंट। यस तो ये हाइपो है। हाइपर फंक्शन है लिकोरिया का होना। लिकोरिया इज अ हाइपर फंक्शन ऑफ यूट्रस। हाइपर है। Excess sweating while eating, this is related to the stomach, sir. Excess sweating sometime related to the stomach, sometime related to the liver. No, while eating, sir, while eating. Sweating from the face. While eating, तो जब हम खाना खा रहे हैं तो फिर नॉर्मली जो है वो एक्सेस स्वेटिंग हो जाती है, बॉडी के अंदर एनर्जी बन रही है, तो वो हो क्या रहा है, वो सारा के सारा लीवर से ही हो रहा है। It is due क्योंकि to liver, sir. जो हमारा फूड होता है उसका एक तो सबसे पहले जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। So we have to sedate or tonify, sir, liver. मेरे ख्याल से तो इस डिजीज के अंदर कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि आप खाना खाते हैं पसीना आता है तो उसको कुछ करें, बट अगर ऐसा लगता है तो यू हैव टू टोनिफाई टू लिवर। Okay, sir. Thank you, sir. नमस्ते सर, पवन बात कर रहा हूँ। जी पवन जी। पैरालिसिस नॉर्मली हाइपर फंक्शन होता है या हाइपो? इट इज एक्चुअली डेड नाउ। जी पैरालिसिस जो है एक्चुअली ना, तो आप पैरालिसिस हाइपर भी हो सकता है और हाइपो भी हो सकता है। पैरालिसिस है ब्रेन के अंदर किसी क्लॉट का जम जाना, ठीक है। तो ये क्लॉट जो है आपका वो हाइपर कंडीशन में भी हो जाता है और हाइपो कंडीशन में भी हो जाता है। दोनों कंडीशन में हेमरेज हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसको जो क्लॉट बना है वो हाइपर कंडीशन से बना है या हाइपो कंडीशन से बना है, ठीक है। पैरालिसिस में क्या है कि जब ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट आ गया तो ब्रेन से मैसेज आना बॉडी के लिए बंद हो गया,
ठीक है, ब्रेन से मैसेज आना बंद हो गया, ये वाली कंडीशन तो हाइपो कंडीशन है, हाँ ठीक है ना। लेकिन वो ब्रेन में क्लॉट क्यों बना था, वो सेकेंडरी जो उसके पीछे हिडन कॉज था, वो आपको देखना पड़ेगा, वो हाइपरटेंशन था या हाइपोटेंशन था। ठीक है ठीक है। ठीक है हेलो जी सर। हेलो सर, एक पेशेंट है मेरे पास। हाँ जी। हेलो माता जी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ग्रुप के अंदर। नो प्रॉब्लम। क्लास कैसे स्टार्ट हो गई? जी सैफी जी बोलिए। ये हाइपर पायरेक्सिया में जो है D3 से हम कैसे डोज डिफाइन करें? पायरेक्सिया में आप देखेंगे कि पायरेक्सिया किस का कॉज क्या है। जी पायरेक्सिया आपको किस वजह से हो सकता है, पायरेक्सिया बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में जो है वो बॉडी हीट हो जाती है। तो जो रिलेटेड ऑर्गन है उस ऑर्गन की आप मेडिसिन चलाइएगा, और बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए आप जो भी मेडिसिन है वो लाइटर डाइल्यूशन में कोई भी मेडिसिन आप चलाइएगा, F1 चला रहे हैं, जो भी मेडिसिन आप दे रहे हैं वो आपको लाइटर डाइल्यूशन में देनी पड़ेगी। लेकिन साथ में जो कॉज है, कॉज की मेडिसिन ऑर्गन के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिएगा आपको टीबी के अंदर भी बुखार आ गया है, ठीक है, तो वहां पर F1 आप लाइटर में दे रहे हैं, लेकिन टीबी की जो लंग्स की दवाई देंगे वो आप स्ट्रॉन्ग में देंगे। वो ऑर्गन देखना पड़ेगा, या कोई ऑर्गन के अंदर पस फॉर्मेशन हो गया है, कोई ऑर्गन गल रहा है, सड़ रहा है, उसकी वजह से जो है वो आपको फीवर आ रहा है, तो आप वहां पर जो है उस ऑर्गन को देखेंगे कि वो ऑर्गन हाइपर कंडीशन में है या हाइपो कंडीशन में। पायरेक्सिया जस्ट एक सिम्टम्स है, बॉडी आपको बता रही है पायरेक्सिया के पीछे क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। किसी भी सिम्टम्स को हमें ऑर्गन के साथ में कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। So I Sir, one quick question, sir. It would be प्रीतम प्रीतम स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है? हाँ, कंट्रोल भी है क्या? Control C, sir. Control C, Control V. I'll share the details, sir. I'm collecting the details. I'll share with you after the session. तो अभी जो है वो स्क्रीन की शॉट लेना चाह रहा था, कंप्यूटर में जो स्क्रीन है हमारा, कंट्रोल Print screen, sir. प्रिंट स्क्रीन PRT. कंट्रोल। हाँ No, just print screen. कंट्रोल Alt या print. ऊपर एक Alt बटन alt होगा print screen. ऊपर वाली लाइन में प्रिंट स्क्रीन का, हम्म नम लॉक के पास में हम्म प्रिंट स्क्रीन का होगा, जहाँ नम लॉक होता है ना, नंबर है उसके ऊपर। You have a button with PRTSC, print screen, sir. So please press that and take the copy paste somewhere. जब उसको हम कर रहे हैं तो जो वहां पर जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना, प्रिंट स्क्रीन पर क्या ऑप्शन आ रहा है? प्रिंट स्क्रीन पर आ रहा है कि ये अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसके बाद पेंट या कोई और ऐप में इसको पेस्ट करो। पेस्ट नहीं करना होता। If you want to take this, for example, screenshot, sir, just search for the key print screen, PRTSC, and just press that and take it into Word document, Word or Paint. देखो जैसे ये प्रिंट स्क्रीन दबाया तो ये 3 ऑप्शन आए ऊपर। 3 ऑप्शन हुआ, ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। क्या कहा? Okay, press once again. Just open one document, sir. Yeah. ठीक है, हो गया। Okay. हाँ सर। और कोई क्वेश्चन किसी का?
Sir, one question, sir. Galaxy Yeah, go ahead, please, M30. Mansi. Can I ask a question, sir? Yes. Dr. Yeah, Mansi. please go ahead. Please go सर ahead. सपोजिटली पेशेंट हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या तो वो वर्स्ट पोजीशन पे जा रहे हैं या रिकवरी पे जा रहे हैं, उस टाइम हम अपने डोजेस को कैसे मैनेज करें? डाइल्यूशन मैनेज करना है कि डोज मैनेज करना है उस टाइम पे? मान लीजिए सपोजिटली एक पेशेंट है जो सही हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, उस टाइम हम उनको टेपर कैसे करें? मेडिसिन को डाइल्यूशन मेडिसिन को बेसिस पे टेपर करने टेपर करेंगे कि मेडिसिन को डोजेस टेपर करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके जो ऑर्गन ओके, तो स्ट्रेट वे उसको नॉर्मल हो बंद जाता कर है तो आप दिया उसको जाए। स्टॉप कर दीजिएगा। ओके, ये और अगर गैलेक्सी सर वही वर्स्ट M30 पोजीशन पे पहुंच रहे हैं तो फिर हमें क्या? ये जी समझ नहीं आया क्या सर? समझ नहीं आया। मेडिसिन को टेपर करने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। जी जी, सीधा उसको बंद करते हैं। यस। और सर कहीं होता है, कहीं जाके हम अटक जाते हैं कि स्टैटिक हो गया पोजीशन रिकवरी का, रिकवर हुआ इनिशियली और वो स्टैटिक हो गया, उसके बाद रिकवरी नहीं आ रही है, ना वो खराब हो रहा है ना वो उस पोजीशन से हिल रहा है, मतलब उसका कंडीशन। टाइम पर हम दूसरा ऑर्गन भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन हमारा जो है वो इसके साथ में एसोसिएटेड है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। प्लस मेडिसिन का जो डोज है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं तो हम उसको वेरी स्ट्रॉन्ग दे सकते हैं। अगर कहीं पर भी कोई स्टेग्नेशन आ रहा है तब सर तो हम स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव कर जाएंगे। थैंक यू Sir, I'll just ask that question what Dr. Mansi asked to make all other people who understand English only to understand it better. So if the condition is getting worse or if the condition is not changing, what she is asking is whether to change the dose or change the medicines. So he said medicine is not required to change, but the dose has to be changed. Is that right, sir? Yes. Okay, sir. Thanks, sir. I have another question. Good morning, doctor. That what in the form, whether it is hyper of metal P or hypo of metal P. Babuji, we will clear it in tomorrow's session. Okay. Please give some time for new people. Okay. Okay. Sir, just one question for the benefit of M30, the new people. Who is Pretam? Who is M30? I don't know, sir. Galaxy M30, can you please unmute yourself and introduce your name and location? Galaxy M30. And you can see this today's session on our YouTube channel. अभी हम इसको YouTube के ऊपर अपलोड कर देंगे। अगर आपको रिपीट करना है तो YouTube के ऊपर इसको आप दोबारा से देख सकते हैं। तो जी सर 10:02 हो गए। हाँ जी। Before we close, it would be better if you can share an example, sir, taking simple cold, when it is hypo, when it is hyper. So that would be helpful for all people joints. सिंपल कोल्ड है मान लीजिएगा, तो सिंपल कोल्ड के अंदर भी देखना पड़ेगा कि ये जो सिंपल कोल्ड है हमें ये किस वजह से हो रहा है, हमारे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से हो रहा है, या फिर कई बार सिंपल कोल्ड जो है वो हमें लीवर की वजह से भी हो सकता है, और कई बार सिंपल कोल्ड जो है वो हमें हमारे स्प्लीन की वजह से भी हो सकता है। इस सिंपल कोल्ड के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि ये अभी हमारे किस ऑर्गन की वजह से हो रहा है, हमारा कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब चल रहा है। हम सीधा सा उस ऑर्गन को जाकर के या तो उस ऑर्गन को टोनिफाई करेंगे या फिर उस ऑर्गन को सेडेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा सिंपल कोल्ड हो रहा है हमारा, सिंपल कोल्ड में नॉर्मली हमारा जो लंग्स है वो हाइपर फंक्शन में जा रहा है, लंग्स हमारा हाइपर हो रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि लंग्स को जो है वो
सीडेट करेंगे, यानी कि लंग्स के लिए हम निगेटिव डोज में मेडिसिन देंगे। प्लस साथ में ये भी देखेंगे कि लंग्स के साथ में दूसरा कौन सा ऑर्गन है जो डिस्टर्ब चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये कोल्ड क्रिएट हो रहा है। इसके अंदर हम लीवर को भी चेक कर सकते हैं और उस पेशेंट के जो है वो स्प्लीन को भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए डायग्नोस का एक पूरा प्रोसेस है। तो डायग्नोसिस का हमारा दूसरा जो क्लासेस है, जो डायग्नोसिस के स्पेशल क्लासेस है, वो क्लासेस है, उसके अंदर हम लोग जो है वो डायग्नोसिस के ऊपर ही चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन था वो सिर्फ डोज एंड डाइल्यूशन के ऊपर था। दो डाइल्यूशन जो है वो कभी भी सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली नहीं है। बॉडी में जो भी सिम्टम्स आया है उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गन हाइपर या हाइपो हो रहा है। हेलो हाइपर या हेलो हाइपो ऑर्गन को हमें ठीक करना है। यस हेलो जी बोलिए। सर, लो शुगर के लिए क्या दे सकते हैं अपन? अगर हमारा शुगर किसी का लो हो रहा है, हाँ, शुगर लो लो हो हो रहा रहा है। है, तो शुगर लो हो रहा है तो उसमें हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब चल रहा है। आपका स्प्लीन डिस्टर्ब अच्छा है या फिर जो है वो आपका लीवर डिस्टर्ब है। लो शुगर जो है वो आपके दो ऑर्गन की वजह से हो सकती है, तो लीवर की वजह से हो सकती है या फिर स्प्लीन की वजह से हो सकती अच्छा है। हाँ, कई बार क्या है कि लो शुगर कैसे होती है कि पेशेंट डायबिटिक है या पेशेंट नॉन डायबिटिक है और बस शुगर उसकी लो होती है, हाई नहीं होती नॉन कभी। डायबिटिक नॉन डायबिटिक है, कभी हाई नहीं हुई। हाँ, तो उसमें मैक्सिमम चांसेस जो है वो लीवर के हो सकते हैं कि लीवर जो है वो डायबिटीज को जो शुगर लेवल है बॉडी का, जो ग्लूकोज है उसके वो अपने पास जो है वो स्टोर करके ना रख रहा हो, अच्छा ये भी एक उसका कॉज हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर जो है ना लीवर को टोनिफाई करिए, लीवर को स्टिमुलेट करिए, यानी कि आप अच्छा लीवर की जो है वो पॉजिटिव दवाई पेशेंट को स्टार्ट करिए। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। हमारे हाँ, पास एक एक लिवर बात मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब जो भी लोग यहाँ बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, मंडे टू थर्सडे सुबह 8 बजे क्लास होती है डेली। आप वहां पर आइए, ज्वाइन कीजिए और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेरी है, वो आप वहां पर कीजिए। और कई लोग अभी 5 एलिमेंट क्लास जो सर ने बताया है 2 सितंबर से चालू होने वाली है, उसको करने के इच्छुक हैं, तो जिन्होंने आपको इस क्लास में ज्वाइन कराया है, जिन्होंने मैसेज भेजा आपको, जिन्होंने बताया, आप उनसे संपर्क कीजिए, ठीक है ना। और डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर यान साहब ने, कि नंबर शेयर कर देंगे लास्ट में, तो वो नंबर भी शेयर कर दिए जाएंगे। और मोस्टली आपको पता ही है, जब आप क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं से तो आपको इस चीज़ का लिंक मिला है, जहाँ से आपको लिंक मिला तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए। डेली हमारा मॉर्निंग सेशन चलता है सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। 2 साल से ये सेशन हमारा लगातार चल रहा है, अभी तक एक भी सेशन के अंदर छुट्टी नहीं हुई है। वो सर थोड़ी मंडे देर ट्यूजडे मुझे भी बोलने दिया वेडनेसडे जाए, थर्सडे। जी मुझे भी बोलने दिया जाए सर थोड़ा सा। एक मिनट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमारा सेशन चलता है। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई कोई फीस नहीं है, कोई भी क्वेरी है आप आकर के यहाँ पर मॉर्निंग में कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। जी जावल जी बोलिए। जी सर, मैंने आपको अपने पापा की रिपोर्ट भेजी थी, मैं उसी के रिजल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। जी तो उनका जो है सर प्लेटलेट्स आपने देखा था 32,000 पर पहुंच गया था, जिसमें आपने मुझे ये कहा था कि बहुत ही सीवियर कंडीशन है या क्रॉनिक मामला है। तो हम अपने तरीके से जो डाइल्यूशन चला रहे थे, उसके बाद फिर हम जो है 5 एलिमेंट पर आए सर। तो वुड टी दिया, वाटर टी दिया, और फिर प्लेटजियस आपके यहाँ से मंगवाया फिर, और हेमजियस दिया सर। मिराकल रिजल्ट हुआ सर, मतलब इतना बढ़िया रिजल्ट के मतलब जैसे 32,000 से वो सीधे 82,000 पे आ गया सर प्लेटलेट्स। हेमोग्लोबिन जंप करके सर 2.1 पर चला गया, सॉरी आरबीसी 2.1 पर चला गया, और हेमोग्लोबिन जो सर 4.5 था वो 6.9 पर चला गया। अभी भी उनके अंडर कंजर्वेशन में मेडिसिन सारी चल रही है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी नए साथी है, मैं भी 22 साल से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। डाइल्यूशन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि हाइपो और एंड हाइपर का सिलेक्शन करना, लेकिन मैं डॉक्टरों को यही सलाह दूंगा कि जब इस तरह के सीवियर कंडीशन आए तो आप नेटजस हर्बल के लिए जो मेडिसिन बनी बनाई है उसका इस्तेमाल जरूर करें।
तभी आपको बहुत ज्यादा मतलब रिस्क की संभावना कम हो जाती। डाइल्यूशन के चक्कर में कभी कभी मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है और फिर मरीज थक करके आपसे दूर चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पेटेंट दवाओं का इस्तेमाल करेंगे जो लैब में बनाई गई है, उसके प्रपोर्शन रेशियो इतने अच्छे होते हैं कि मरीजों पर वो तुरंत ही कारगर होती है। यही बात बतानी थी सर। मैं अभी आपको कुछ देर में सारी रिपोर्टें शेयर कर दूंगा, ग्रुप में भी Thank डाल you. दूंगा। Thank जी you, सर। Jia ji. जी सर। Now, I think it has been a fantastic session. कई लोग मुझे मैसेज कर चुके हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। कोशिश ये रहेगी कि we will try and arrange one more class where all of you can join. And for that class, we will probably extend from 100 to probably 200. कोशिश ये करते हैं। We will let you know shortly. दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सर आपको मैंने मैसेज भेजा हुआ, एक लिस्ट बना दो कि who all can be contacted for any information on classes, lectures, any information. एक लिस्ट आपके व्हाट्सएप पर दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ अस हियर, जैसे मेरे नाम के साथ मेरा नंबर जुड़ा हुआ है, ये नंबर नोट करियो एंड आप हमें कांटेक्ट कीजिए। वी विल लेट यू नो। थैंक यू वेरी मच, यू जल्दी हम लोग वंडरफुल पीपल, फॉर मेकिंग दिस डे so valuable. Thank you very much. Good day. थैंक यू थैंक यू बहुत वेरी अच्छा मच। लगा। आज जो है सारे लोग पहुंचे, मेरा जूम भी आज फुल हो गया। आज हुडा सर आप एक पीपीटी शीट शेयर करिए और सबके नंबर्स उसमें ऐड कर दीजिए। तंजावुर में जैसे नंद कुमार है, वो संजीत चेन्नई तैयार में कर देंगे, उनको पूरे ऑल इंडिया के जो नंबर है वो सारे तैयार करके और वो एक सर्कुलेट कर देंगे। संजीत को बोल दूंगा मैं, बना करके आपके साथ में शेयर कर देंगे। हाँ, पूरी टीम के नंबर आज जो क्लास में हैं उनके बेनिफिट के लिए। ओके ओके। एक 7-8-10 लोगों की तो ऐड कर दो ताकि ये हमें कांटेक्ट करे and then we will share the information all India. मेरे नंबर भी शेयर करा दीजिएगा सर। हाँ, वो टीम के जितने भी लोग हैं जाओ सबका वो बना करके पूरा एक ब्रोशर टाइप का उसमें वो सब शेयर करा देंगे एक साथ ही। जी सर। थैंक यू डॉक्टर बीना। Thank you, sir. Thank you everyone for joining. Thank you. Thank you. Good day. Thank you, Hemlata. Thank you. Although I could not introduce you in the beginning, Thank you. it makes Good it day, sir. necessary that I thank you at least at the end of the Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Yes, sir. Okay, sir. धन्यवाद। Thank you very much. Okay, sir. Thank you very much. Thank you, everyone.